Okay. Yeah. Hello, sir. Yes. Good. Hello. Actually, I wasn't able to attend the session yesterday, day after yesterday, Okay. day before yesterday. Yeah. So I So have a basically, doubt. yeah. Tell me. You and Rahul has a conversation regarding the audience one, Yeah. and Rahul said that he made the advertisement and all with a runtime audience. So what was that? I'll show you today. Today, at the end of the session, I'll be showing you what is runtime audience, how you can use this audience. Runtime means you create the audience while creating the ad. Basically, when you create the audience while doing, there are two ways to create audience. First, we can create an audience, save it, and use it at the time of the ad. Otherwise, we can create the same audience at the time of creating the ad. So that is runtime Oh, audience. I'll show okay, you sir. today. Okay, sir. Thank you. I suppose so. There are a few people now, so I won't be waiting for long. I'll wait 2 or 3 minutes. I just start because I have to complete in 2 sessions today, and then I suppose so tomorrow next. I don't suppose so I won't be able to complete much, but I'm trying to complete as much as I can. Basically, I'll be talking about the different platforms today. I'll be talking about the buyer's journey in more detail, and then I'll be showing you how to create a Facebook ad. The three things I'll be touching today. Tomorrow will be a more important session than today. Tomorrow I'll be telling you about total audit. Means you won't be learning this anywhere else. Even if you'll be learning from, say, a digital marketing agency or something like that, they won't be telling you how to audit a company's present status. Those are the very advanced details which I'll be sharing you, because in case you join my internship, those things will be required at the beginning. So up till now I was giving the overview. Today also I'll be giving the overview, but next session will be very practical. It will be totally, means from that you can judge a company, means what is its presence, uh, what is its current scenario, how it is working and all. So tomorrow session I'll be much more, means live or than today. Today will be theory and practicals both. Yes, Payal, Neha, any questions? So, And one more thing, I want to make it very clear. These sessions are optional. This has nothing to do with internship. I just want to train people, so who knows. So when I take the interview for internship, they at least have a knowledge. So in case you're expert, I'm not asking you to be here. There were a few questions from me कि internship के लिए क्या compulsory? मैंने नहीं, this is not compulsory. Basically, this is a training I'm giving. So whoever is interested, they can learn. They are doing the internship, doesn't not doing the internship doesn't matter. If you don't want to do the internship, then also you can join us. I made it very clear, I suppose, previously. Okay, it is 5:04. I'll be starting the presentation. Should I start? yes, Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yes, sir. should I? Okay. One more thing, any doubts? Ask me. I try to make it as easy as possible, but it is easy for me. I know it won't be that easy for you. So, any doubts, please ask me. I suppose so my screen is visible now. Yes, sir. Now, this is a software I'm showing you. You know what this software is? Means what this is? Anybody, any idea what is this called? Mind map, I Yeah, guess. yeah. This is Coggle, mind map. Coggle, Coggle. Yeah, Coggle is the Mining. software, and Coggle is the software, and the mind map is the thing. Because this is a mind map which has been created. So, in case you selected the internship, first thing I'll be teaching you how to create a mind map. I'm not actually teaching you right now because that I'll be teaching you inside the internship. I'm just showing you what the mind map is. This mind map is a basically brainstorming map where we can strategize. So this is Coggle, which we'll be using. I'm just showing you Coggle in more detail. I'm just giving you the marketing roadmap.
in marketing movement, there are channels which needs to be created. Website can have pages, and what can be part of pages? Let me hear from you, Rahul. What can be inside pages in तो website? कॉन्टेक्ट पेजेस हो सकता है, अपनी या डिटेल्स के कॉन्टैक्ट हो हिसाब से, सकता है, कॉन्टेक्ट हो सकता है, बेसिक इंफॉर्मेशन, डिटेल्स और रिलेटेड टू कंटेंट अबाउट, कॉन्टैक्ट, all those kind of सर्विस, things are included in pages. सर्विस, Main pages, about, home page, important URLs, page. important URLs or links, whatever it is. सो मैं अभी देखो रन टाइम पे बना रहा हूँ. सो पेजेस में हो सकता है. ब्लॉग में क्या हो सकता है? ब्लॉग्स के अंदर क्या हो सकता है? Travel blogging, हम्म? kind of blog. What types of blog? जिस तरह का टाइप ऑफ ब्लॉग्स है, blogging, टाइप ऑफ ब्लॉग. उसके बाद उस ब्लॉग में कैटेगरीज हो travel सकती है. blogging, हाँ, कैटेगरीज हो सकती है कि ये किससे ट्रैवल से रिलेटेड है, travel किससे blogging, रिलेटेड है. photography blogging. उसके बाद उसमें टैग्स हो सकते हैं. सो अभी जैसे देख रहे हो, देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको क्लिक करके इसको अरेंज, सॉरी, इसको टच करके इसको ऐसे अरेंज करूंगा तो ये पूरा अरेंज हो जाएगा. क्लियर? तो ये मैं प्रेजेंटेशन में जाऊंगा. आई वोंट बी गोइंग इन मच इन दिस. आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे One रही है? thing is from my side, so I just Yeah. want to या ask you. I just want to request you to send all the PPTs in our group, so it will be more convenient for all. या I'll be sending you those. I'll be If sending. it possible. Yes, ma'am. Okay, thank you so much, sir. I'll be sharing that. Means I was thinking to share it, but I was not sharing, but I'll share those. So this thing is So done it's in mind yesterday, so I just about to ask you about Yeah, it. yeah, sure. So that's why. slideshow. This is I'm doing digital marketing only. Channels. Now, what are the channels which we'll be using? How we will be communicating with our customers, or how a business can communicate with the customers. There are many channels. One is website. From your website, your information can go to your customers. Second is using Google. If you are ranking in the SEO and all, from Google it can go. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Quora, Pinterest, WhatsApp, and many more. So, can you suggest each one of me? Means you, what are the different channels which are there? More channels which are there. Starting with Ayushi. Any other channel you can think of? Facebook, Yeah, Facebook was there. Instagram, Yeah, Instagram. Facebook, Instagram, LinkedIn, and all are there. Okay. What more? Sir, Reddit. Huh? Reddit. Okay, I get from you Reddit. Yes. Now I was asking Ayushi. I'll come to each one of you. I'll come to each one of you. What Sir, about you? Reddit. Yeah, I get it. Reddit. I get it. Reddit. What else, Ayushi? Any other channel? No, sir. There are many, many more. SMS, plain simple SMS I also do. Isn't Yeah, it? text A phone call. message. Yeah. What else? Yes, sir. There are hundreds of Viber, TikTok, right? So there are many, many, many channels from which you can connect. It depends upon what is your buyer persona, how it is working, how you want to connect, and all of them are not necessary, right? So I'll come to few channels. I discuss few channels in detail. Now in website, there can be pages and there can be blocks. So these are the two portions. Now I'll go for something live and I'll show you, try to show you. Tell me a company, any company's name. Fern and Petals. Edutech, sir. Fern and Petals. Yes, Fern and Petals. The first thing you are seeing is what? FNP ad. This is a what ad? Can you see this? Yes, sir. This is ad. This is a Google ad.
The Fern and Petal is running a Google ad for themselves. And the second one is not an ad, but the organic post. And because of the SEO, they rank here. This portion is the Google My Business page. What is this? This is basically the Google My Business portion. So I'm just clicking here. This is an e-commerce website because there is a cart. And basically they are selling multiple things. So you can see here. So this is a Fern and Petal. They are basically an e-commerce site. They are having all the things about themselves out here. If you want to search more, they have a franchisee inquiry and they become a partner out here. If you go at the bottom, there is about us, something about the team, the affiliate program, their blog, the sitemap which they have. This is a pop-up. You can see the pop-up. Can you all see? What does it say? Before you go, check out the exclusive gift with up to 70% off plus additional 20% off. Use this code. Explore now. So basically, the moment I'm visiting, they are giving me something of an offer using which I can interact. So one place where you can interact with your customers is on your website. Now, when I come to the About Us page, they tell about what is the mission, about the team, how they started, their strategy, everything. Here is a timeline which they are giving. Then they are telling about the team members. Who are the team members and what are their achievements and how they are working with this company. The affiliate program. What are the programs they are running or the services? More services or more products, those are the highlights. Now they have a blog. Can you see the blog? Is blog visible? Yes, sir. Yes, sir. So what is this blog all about? Is it telling something about say digital marketing? Is it telling about something about digital marketing? Yes or no? No. No. What is it telling about? Something related to the products. Celebrating Mother's Day, advantages of the indoor plants, gifts. What are the thoughtful gifts? How the bamboo is lucky, flower plants, because Fern and Petal have these products in their store, and all the blog posts are related to these. Just see the products: home decor, anniversary special, books, perfume, gifts, flowers, cakes. And if you go to the blog posts, all the posts are related to it. And then they have a category, as I told you, and you can choose if you want to go for the Bihu festival gifts or birthdays. For birthdays, they have got 54 blog posts which help you to choose something for your birthday. And the Facebook page link is here. I'm opening the Facebook page from here. And this is the Fern and Petal's Facebook page. Right? The photos, the posts, as you can see, the type of post they are putting. So what do you understand by this? They are using the website to communicate the message to their clients. They are giving the offers and all. So I'll come to my presentation. So the website has a home page. You can see here. My screen is visible. Yes, sir. There has a About Us page. They have service page. They have a contact page. They have a pop-up. They have a landing page. And SEO is done, so the
page is coming on the first page of Google, right? For blog, it is their business blog. It is not digital marketing blog or something to do with digital marketing or say skydiving or adventure sports. Basically, this blog is related to the products of the business. They have categories like birthdays, Mother's Day, the gifts you buy, the type of gifts, the home decor, and then they have tags from which you can search. So up to this part, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So basically today I'll be talking about how you can communicate with the customers, because what I want you to do in case you join our internship, the first thing I want you to do is create a marketing plan. And when you create a marketing plan, you have to know the channels from which you can communicate. So I'll give you the option to create a website plan for a particular business. Say if it is gift shop, what should be on the website, what should be on the home page, what should be on the about us page, what should be on third page. This type of project you have to do. You have to understand how to communicate the message. So secondly, what is the difference between a website and a blog? Any idea, say Divyansh? Sir, website they represent the whole institution or company, whereas in blog we write content about a specific topic. Okay, good. What do you think about it, Niharika? Niharika, are you there? Yes, sir. So what is the तो difference आपने between a क्या website पूछा and a एक बार blog? आप repeat कर सकते हैं? Hmm? What is the difference between a website and a blog, Niharika? सो वेबसाइट पे हमारे कंपनी के बारे में अलग अलग पेजेस में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं, whereas ब्लॉग में किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग डिटेल देते हैं या उसके बारे में लिखते हैं. ये प्रोडक्ट के और डिटेल अपने प्रोडक्ट पेजेस में देते हैं. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बेसिकली ब्लॉग के अंदर हम कुछ ऐसा मैसेज देते हैं जो लोग आके पढ़ें. बेसिकली पीपल कम एंड रीड द ब्लॉग. It can be information about a product. It can be on social issues. But whatever it is, usually we create, keep it related to a product line. जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है. कोशिश यही रहती है. कई बार होता है कि हम लोग दूसरे भी देते हैं. क्लियर? नेहा, what do you understand by between the difference between the website and a blog? So website is the overall. It is for the company, and blog is a message. Yeah. Basically, website is created to give the information of the company. And blog is used to give the message about the company. So now, Payal, I will have you a different question for you. Payal, Yes, sir. basically, I want to know how many times a website is edited and how many times a blog is edited in a month. सर ब्लॉग हम हर दिन एडिट कर सकते हैं, हर दिन पोस्ट वगैरह हम डाल सकते हैं, बट वेबसाइट कुछ अपडेट्स वगैरह करना हो तो मंथली 1 और 2 बार, इससे ज्यादा नहीं होता है. वेबसाइट में आप मंथली 1 या 2 अपडेट्स क्या करेंगे? जी सर. वेबसाइट में मंथली 1 या 2 अपडेट्स क्या करेंगे आप? मान लीजिए मधुकर चोपड़ा की एक वेबसाइट है, हाँ, तो उसमें हर महीने में 2 चीज क्या चेंज करूंगा? नहीं मतलब जरूरत के अनुसार, जरूरत पड़ेगा हाँ, तभी वेबसाइट में बहुत जरूरत के अनुसार चेंज होता है. हाँ. Website is regularly not updated, and blog is updated as per new post. After that, when you are using a blog, वीकली, बाई वीकली, मंथली, क्वार्टरली, जैसे अपने ब्लॉग्स पे पोस्ट डालते हैं, हो सकता है कोई हफ्ते में एक डालता हो, कोई दिन में एक डालता हो, कोई हफ्ते में 3 बार डालता हो, कोई महीने में 1 बार डालता हो. इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी, बट ब्लॉग्स कैन बी रेगुलरली अपडेटेड. ठीक? आयुषी, आर यू देयर? Yes, sir. I want to know you know what is the difference between a blog page and a web page, website page. ब्लॉग के एक पेज में और वेबसाइट के एक पेज में क्या फर्क होता है? वेब पेज पे तो डिटेलिंग्स वगैरह देते हैं, और एंड blog ब्लॉग पेज में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग
जो आपको डिलीवर करनी है, द मैसेज यू वांट टू डिलीवर टू पीपल. ब्लॉग पेज इज मोर लाइक अ स्टोरी राइटिंग और समथिंग लाइक अ मैसेज और Yeah. ऐसे टाइप का है, जबकि वेब पेज में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंपनी रिलेटेड होती है. वेब पेज स्टैटिक, ये बात समझिएगा. स्टैटिक मतलब वो जल्दी से चेंज नहीं होता. ब्लॉग पोस्ट बार बार चेंज होता रहता है. ब्लॉग की इन्फॉर्मेशन हो सकती है इस हफ्ते आपके फ्लावर्स की इन्फॉर्मेशन हो, आफ्टर 2 weeks you may have information about a gift. If it is fun pattern, after 3 weeks it may be something about home decor, after 4th week it can be something about plants and all they are selling, after 5th week it can be on Diwali diyas which they are selling. लेकिन ब्लॉग के में इंफॉर्मेशन स्टोरी के फॉर्मेट में होती है, ऐसे के फॉर्मेट में होती है, प्रॉज एंड कॉन ये सब बताया जाता है. लेकिन जब प्रोडक्ट पेजेस होते हैं या वेबसाइट होती है, उसकी डिटेल बेसिकली इसके रिलेटेड नहीं होती. इट एक्सप्लेन मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स, इट गिव द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द डिटेल वे, बट इट यूजुअली डजंट टेल अ स्टोरी, राइट? अच्छा राहुल, आर यू देयर? Yes, sir. आई वांट टू नो आपकी वेबसाइट में why you will go to see a website and why you will see to go to a blog. So basically, I will go on a website for getting brief knowledge about that particular firm or company. Yeah. और for blog post और मतलब blog वगैरह के हिसाब से I will go for deeply knowledge and reviews kind of. blog को होता है वो person से लिखा जाता है, website जो होता है developers के हिसाब से develop की जाती है. तो डेवलपर्स जो होते हैं वो कंपनीज की इंफॉर्मेशन जानते हैं और ब्लॉग पोस्ट के अंदर अपने उसके इन डीप रिव्यूज और उसके बारे में अपने जान सकते हैं. तो उसकी जिसमें ब्लॉग पे और उसमें वेबसाइट पे रिव्यूज नहीं मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन बेसिकली, रिव्यूज नहीं, इंफॉर्मेशन और कंटेनिंग मैसेजेस वगैरह उसके हिसाब से रिव्यूज नहीं बोलेंगे. When you go to a blog, you basically see the information regarding the products and all. You want to see the stories. You want to see how to guides. You want to see something related to the products, how it is affecting the society and all. लेकिन जब आप वेबसाइट में जाते हैं तो व्हेन यू हैव अ मोटो टू गो अ वेबसाइट, यू विल चेक इट आउट टू नो मोर अबाउट द कंपनी. मधुकर चोपड़ा की वेबसाइट में आपका विजिट करेंगे. यू वांट टू नो मोर अबाउट मधुकर चोपड़ा व्हेन यू विजिट द वेबसाइट ऑफ एडुटेक मल्टीमीडिया, व्हेन यू वांट टू नो मोर अबाउट एडुटेक मल्टीमीडिया or any other company like Fern and Petal, Larsen and Toubro, Tata Steel, whatever the company you're visiting, you will visit when you want to know more about the company. और वो जल्दी से चेंज नहीं होता. You won't be visiting each and every week, will you? Aditi, can you hear me? Will you be visiting a blog again and again and again? Sir, sorry. आप किसी ब्लॉग को बार बार मतलब एक वेबसाइट को बार बार विजिट करेंगे, एक ब्लॉग को बार बार विजिट करेंगे? Will you be visiting a company's website again and again, or you'll be visiting the blog? I Why? will. Why? So because I'll check the products, new blogs about the product again and again. So products usually क्या होता है, products is also dynamic content जो आपने जैसे कहा तो वो e-commerce websites पे होता है. तो products के लिए आप you can visit again and again. Blogs के लिए you can visit again and again. But you won't be regularly visiting the website to check it again. So in case you are looking for SEO content या किसी वेबसाइट में बार बार किसी विजिटर्स को लाएं तो you have to have a blog. It is very 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 tough to get the person to the website and again. मान लीजिए there is a doctor and he is having a website, you won't be visiting the website again and again. But if there is a blog about some teeth pains, if it's a dentist and there is blog about teeth pain, how to cure the teeth pain, what to do in the cat of root canal, what is the right way of brushing and all, so blog you can visit again and again. Each week there can be a new blog, but each week there cannot be a new page in the website. Clear? इतना सबको समझ में आ गया? Everybody understood? Yes, sir. Yeah, basically Yes, sir. I cleared one platform which is website and blog. Now I'll be moving on to another platforms. So today I'll be talking about more of the channels and all. Any problem, ask me because I'll be explaining you in very detail today. So I've talked about homepage, about services. These are the website pages. Now next, Google. Google is basically the best known search engine right now. It rules the world. 70 to 80% searches are conducted on Google. After that, there are small search engines like Amazon, Microsoft's Bing or Yahoo,
but the searches are pretty less. And other search engines have the more means least search engines, but the most search platform is Google. Now this Google has multiple parts. One is Google My Business, which I'll be talking about here. After search, in this Google My Business, they have Google Map. These are the portion of Google Map which I'll be discussing. SEO, search engine optimization. I'll talk about what is on-page SEO and what is off-page SEO. Then there are Google ads, search ads, display ads, which we'll be discussing. Then there'll be Google Analytics, which I'll be discussing, and Google Tag Manager. So I'm again going to the website and show you live how it works. Can you see fern and petals? And I've shown you that this is Google ad. What type of ad is this? Google ad. Yeah, it is a Google ad. What type of ad is this? I've searched fern and petals, it's showing me fern and petals ad. So this is basically a search ad. You can see I've searched something. Flower. Now these ads you are seeing, flower bouquet. These all ads are search ads. Can you see? Yes, sir. This portion ad, these are called shopping ads. These are also called shopping ads, display ads. These are shopping ads. And now I'll show you actual display ads like fern and petal. I don't know whether it has or not. See, I'll 10 top flowers arrangements. See what this is a search I'm doing in Google. What is this first topic which is coming? This is a blog. As you can see, it is a flower blog. Let me open it. This is a second blog. There is a 15% off. Now, whenever I'm coming to this blog, have a look. These websites, either they're selling the websites or they are giving the products. So these are the blogs from which they are doing SEO and the people are coming to their site. The net is pretty slow here. Can you see here this blog and the ad? Can you see the ad which came here? Can you see this ad? Yes, sir. Yes, sir. कौन सी कंपनी का ad है? Ferns and petals. Ferns and petals. And which page we are on? homestratosphere.com. This has anything to do with ferns and petal? Yes or no? No. No. So why the hell this ad is coming here? Because we searched Because for of shopping and sales. Recently we have Why searched is about this it. firms and petal ad is coming here? This ad, these ad are display ads. What type of ads are these? Are these ad on Google? Display ads. ये ad Google में है, ये Google पे है. ये अभी मैं जिस साइट में हूँ, is that Google? सर मैं Yes, sir. आंसर दूंगी. जिस साइट में अभी हम लोग हैं, is that Google site or something else? नेहा वो Google है कि अलग है कुछ? Google sites. हाँ?
जहाँ पे वो ऐड आ रहा था वो गूगल है या कोई दूसरी साइट है, ब्लॉग साइट है? सो दूसरी साइट है वो वेरी गुड, दूसरी साइट है. हाँ So that is not Google, and you're seeing the ads, and ads are shown by which company? One second, I'll just again present you the screen. I am presenting again. My screen is visible now. ये दूसरी साइट है, उसमें जो ऐड दिखाई दे रहा है होम स्टेटस पे करके साइट है, ये ऐड दिखाई दे रहा है और मैं इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एड्स बाय गूगल. कैन एनीबॉडी सी इट? यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा सा है. क्या लिखा हुआ है? Ads by Google. Ads by Google. एड्स बाय गूगल. होम स्टेटसफियर पे दिखा रहा है, उस पर क्लिक करते हैं. Why this ad? This ad is based on information on the website you are viewing. The information is about Google account. Your similarity, the group of people advertisers trying to reach according to activity while you sign in Google. Your visit to advertiser or web shop app, Google estimate that your interest based on your activity that you sign in Google. So Google is thinking that this site is site of your interest. And who is the advertiser? Fern and Petals India. So इससे क्या पता चला? What you come to know about this? इससे अपने को ये पता चला that you can when a good site is there, they are retargeting you. Because when I went to Ferns and Petals, the Ferns and Petals को लगा कि he is basically searching me for my products, and I am going to another site just after 5 to 10 minutes. I suppose not more than that. After 10 minutes, the same Firm and Petal ad I am seeing that. It was not manually possible. It is done by using the Google AI. Google Artificial Intelligence is doing this thing and they are trying to retarget. And how do Google Artificial Intelligence retarget? Because this site is having something called Google Analytics installed, and Google, that is called Google Pixel. According to that Google Ad Pixel, whichever site I am going, which is connected to Google or which is serving ads for Google, on those sites I can see the ads. So these ads are called display ads. What are these ads called, Aditi? Are you there, Aditi? Sorry, there was a disconnection out there. I suppose there is some problem with the net connection. So I was using another network. Sir, you are on mute, so. Oh, sorry. Sorry, I was disconnected because some network issue. So I am on another network and I've come back again. So basically I had some network issue. So what was I talking about? Means what was the last thing you heard me say? Google Pixel. Yeah. Basically Google tracking code. Google, it is not called Pixel. It is Google tracking code. Basically Google Analytics is there, and using Analytics of Google's ad manager, they connect to you and show you the ads. Clear?
Any questions there? So I'm again No, sir. presenting you the screen. So I was talking to you about Google My Business, which I'll talk in more detail. SEO, how they are coming in SEO means I'll talk about it. I've talked about two ads, search ad and display ads, Google Analytics, app details, I'll show you a bit of it. Google Tag Manager. I told you about the ads. Now, any of you can tell me another company, any other company name from Calcutta? Can anybody tell me, Neha, can you tell me any company from Calcutta? Yes, sir. Cookies are crazy for chocolate. Okay, Crazy for Chocolates. I'll look for Crazy for Chocolates. Crazy for Chocolates. Now, when I type Crazy for Chocolates, these few options come. These are all Google My Business. You can see this. This Google My Business has a website, direction. You can save this, its location, address, phone number, what are the popular times. If I click on the pictures, it shows me the pictures of that. What are the pictures given there? See, you can see many pictures, the items pictures, whatever they're selling, and the pictures specially given by the owner. After that, there are reviews. People give the testimonials, how the pastry was. There are 93 reviews. The people can give these reviews. People also give the photographs. Usually local guides are there who helps them. And it also gives a detail basically where the web results are. And if somebody wants to ask the question, they can ask the questions. Yeah. Can you see this where my cursor is? What is it called? Can you see? Am I audible? Own this business. So if somebody wants to own this business, they can click this and you say that this is my business, and Google will check it, give you a postcard or something like that. If you replied, this business can be yours. When you click on the direct website, it usually opens your website. This is the Crazy for Chocolate website, and as I told you, there were multiple pages here. What are the outlets, about us, contact us, corporate offers, recipes and classes, and whatnot. My screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I talked about Google My Business. I try to make you understand. Now this Google My Business is not automatically created. Any business who wants to present their business on the Google, usually they have to fill this data. And they have to claim their listing, that this is my listing, this is my opening time, this is my closing time, these things. Even if I say ICICI Bank, this will also have a Google My listing. This will tell about the company details and all. And if I go to particular, say, branch, this will also have a separate listing, if you can see. And this also has opening hours, closing hours. You can check it out, what is the timing and all. There are a few questions out there, pictures of the bank which the bank has shared. There will be the pictures of the people who are also sharing that. Bank has not shared many pictures, but there are people who are sharing these pictures, and the people who are sharing these pictures are called local guides. What are they called? Local guides. Clear? Yes, sir.
So using Google My Business, we can easily view the things. Also, Google gets the data, and it is very, very, very good for SEO. SEO is basically two types. SEO is basically search engine optimization. So you can do on-page SEO. On-page SEO is basically, one second. When I did something like crazy for chocolates. That's click here. Now the content of this website, the speed of this website, the keywords used in this website, these things which are done is on-page SEO. How fast it loads, what are the words which are being used, what is inside this metadata, what is the type of blog it is, if it is having. These things will help us create on-page website. Off-page website is if this website has links from somewhere else. If somebody else is referring to it like this Zomato, from there Crazy for Chocolate is coming to, this is an off-page SEO because it is helping it rank. This Facebook link is its off-page SEO. This Dineout link is off-page SEO. These are called backlinks. So I won't go much details, but I've told you a bit about on-page SEO and off-page SEO. So in case if you have got any question, you can ask me right now and I'll move forward. Any questions from anybody? Payal, Aditi, Rahul? No, sir. No, sir. No, sir. Clear to you, Neha, Niharika, Yes, sir. and Divyansh? Clear? Yes, sir. So I'll move forward. Now, when I'm talking about Facebook, hear me out very nicely. We are having a profile, a page, a group, a messenger, event. These are things which can be created on Facebook. You can create a profile, you can create a page, you can create a group, you can use messenger, and you can use events. Now I'll talk about you, I'll try to understand how much you know about Facebook. So Niharika, you know what is Facebook profile? Yes, sir. Do you have a Facebook profile? Yes, sir. Do you have a Facebook page? No. No. Okay. Rahul, do you have a Facebook profile? Yes, sir. And do you have a Facebook page? Yes, sir. What is the name of your Facebook page? Sorry, sir. What is the name of your Facebook page? So it's on my own name basically. I just owning on modeling, creating Facebook page So- related to So- Wagyu fashions and all. Huh? What is the name? Wagyu fashion, basically. Baggy Fish, whatever. So, hear me out because these details I'm giving me make the things very clear for you. When you have a profile on the Facebook, basically you have a personal page, personal profile. That page is not for business. You are there to be on Facebook to communicate with your friends and family. Or maybe you want to see the details of your friends and family and you want to share that. Facebook is that social media network. Clear? So Facebook profile is created for social media interaction and not business. Clear? Understood, Neha, what I told about Facebook profile? Yes, sir. What So is, for yeah, Facebook profile is to connect with friends and family. yeah. So what can you means? So whenever you have a connection with Facebook profile, it is called friend. What is it called? Friend. When you want to connect with somebody, you send a friend request. I'll go to my Facebook page and I'll show you what it is all about. I suppose. So, let me go to my Facebook page. So if you see my Facebook page, So you're not sharing this. oh sorry. Just inform me in case I'm not sharing it. Yeah.
Now this is my Facebook profile. As you can see, this is the newsfeed which is coming. You read it? Can you see this newsfeed? What is it telling? What is it telling? Oribi. And what does it say? Google Analytics. Forget Google Analytics. Forget that. The way to understand what is happening on the site, Google Analytics is old. They have got something new which is very good for tracking. So what is my interest basically? Digital marketing. And the things I am working on is Google Analytics. So the ads they are showing me is of Google Analytics. Let me click here and just check what I'm doing, where I'm right now. Where is my cursor? Can you see? Why I'm seeing Yes, this? sir. Why I'm seeing this ad? And let me click it. You are seeing this ad because your information matches Orbi's advertisement requests. There could be more factors, learn more. Orbi indicated you may have visited the blog. Maybe I have visited blog. Is trying to reach people who are 20 years or older. So basically, why I'm seeing this ad? Because they understand I have some interest in analytics. I have some interest in tracking the people. I have interest in these things. So that is why I'm seeing this ad. So these are relations and all coming, and after few things there will be again an ad. Now what is this ad? Can you see the sponsored says it is an ad. What is this ad about? Elegant theme. Yeah. And what is elegant theme? Basically is that a website development platform, means website development plugin. It is called a plugin for web development. And why am I seeing this ad? Because I visited elegant themes, because it indicated you may have visited there. So according to my birthday, they're checking out what when I have visited, what I have. Now how do Facebook knows it? That you have logged on Facebook and visited elegant theme on what date? 1st May. And today is 2nd May. Yesterday I visited the site because I have the subscription of ETV. So I visited that. So these are very well retargeted ads, as you can see. This is a suggestion, but basically, what is this ad? Firework. Firework. A new era of storytelling for. When I am seeing this ad, these ad will be always there, which is my interest, field of interest. You see the sponsored ad here. 73K royalty free stock media assets. Official WhatsApp API. You will rarely see ads which are not for interest, and this is my profile page. Now if you go here and you see friends, what you see? Friends, people who are friends, so I can send friend requests. If you come to my page, now these are my friends, these are my photos, these are my friends. Can you see? Yes, sir. Yes, sir. I've got 4,300 friends. These are the photos, and this is my profile. Now if I want to run, I want asking you, anybody except Rahul. I'm not asking you, Rahul, because you ran the ads. Can I run an ad from this profile? Not you, Rahul, anybody else. Can I run an ad from my profile and make people visit my profile? Niharika? No, sir. Why not? Because this is my informal private account, and this is just to connect with friends, and this is Sir. not an Yeah, Neha. business account. I couldn't hear your last line. It was My question was, can I run an ad from my Facebook account and ask people to visit my Facebook page? It means Facebook profile. Can I target few friends
मैं किसी फ्रेंड्स को टारगेट कर सकता हूँ कि वो मेरे वेबसाइट पे विजिट करें? क्या मैं या मैं ऐसे लोगों को टारगेट कर सकता हूँ मेरे वेबसाइट सॉरी मेरे प्रोफाइल को विजिट करें? कैन आई टारगेट पीपल टू विजिट माय फेसबुक प्रोफाइल? मैं क्या ऐड चला सकता हूँ फेसबुक प्रोफाइल को विजिट कराने के लिए? यस और नो? नेहा, एनी आइडिया? No, sir. व्हाई नॉट? Because it is not a business account Facebook. Right. ठीक है, पायल तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस है? सो मेरे भी सेम है, एड्स रन करने के लिए हमारा बिजनेस पेज जरूरत है या फेसबुक पे। So Divyansh, everybody, I'm telling you, you cannot run a ad on profile. So अगर कोई बिजनेस है जिसको लोगों को बुलाना है और टारगेट करना है, they have to have a page. So if there is some dentist or doctor or grocer or ebook seller or anybody and they are creating a profile for the company, then it is not working because they cannot run an ad from that. Clear? प्रोफाइल हमेशा पर्सन से बनती है, पेज बिजनेस के लिए बनता है. क्लियर? Now I'll show you. I also have got a page. I'll show you what the page is. Now go to pages which I have in a personal name. Now this is my page. मधुकर चोपड़ा का पेज है. You can see the page. Yes, sir. Yes, sir. And what is out there? कुछ अलग लग रहा है? यहाँ पे what you can do. मेरा डिटेल है यहाँ पे, मेरा इनबॉक्स है, मेरे बिजनेस एप्स है. पीपल आर मैसेजिंग मी, दैट इज माई इनबॉक्स. डिफरेंट पीपल आर मैसेजिंग फ्रॉम माई डिफरेंट रीजन्स. ये शायद आपने शायद किया था, वंदना ने भेजा था. आइदर इंस्टाग्राम और फेसबुक से जो भी मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं इनबॉक्स में, दिस इज माई बिजनेस अकाउंट. हाउ मेनी पीपल आई हैव रीच्ड, who is liking, what is my office address, how many people are following me, what is my website. These information is given on my page and they are not my friends. What are they? You can see what is written here. Followers. These many people are following and liking me, so they are followers. So you have to understand the difference between a page and a profile. So when we are having a page, it means this page can run an ad. From here I can boost a post, I can get more booking, I can promote my page, I can get more calls, I can promote the business locally. I cannot boost my Facebook post on my profile. I cannot reach more people using boosting on my profile. So to boost a post or do anything which is advertising and targeting, I have to use a page and not a profile. Clear? I suppose so. I'm trying to able to make you understand. तो अगर कभी भी अपने को कोई टारगेटिंग करनी है, any business I have to use, it has to have a Facebook page. Understand the difference between page and profile? Clear, Rahul? Yes, sir. अच्छा, अब Aditi, one thing I want to ask you. Can I have a business Yes, page sir. without creating a business Facebook profile? मैं सीधा पेज क्रिएट कर सकता हूँ प्रोफाइल के बिना? Can I create a business page without creating a profile? मानो मेरे को अपना पेज नहीं, Yes, मुझे yes, अपना sir. प्रोफाइल नहीं क्रिएट करना. I just want to create a business page of Madhukar Chopra. Is it possible? Yes, sir. Okay, good. Divyansh, can I create a Facebook page without a profile? Yes, sir. जैसे मेरे मान लीजिए मैं आईसीआईसी बैंक का डायरेक्टर हूँ और मैं आईसीआईसी बैंक का एक फेसबुक पेज क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं अपने बिना प्रोफाइल के क्या फेसबुक पेज क्रिएट कर सकता हूँ? Yes, sir. What do you think about it, Rahul?
Rahul, can you hear me? Can I create a page without a profile? So basically you can, but mainly you just need your profile for your basic details. So that's why if we are just linking it in, then it will be more helpful for us. No, sir. We cannot create a page without a profile. Simple. Profile is Your basic info. Your profile is basic info. So whatever page you are created, it is linked to your profile. But your profile is basic info. You cannot create a page without profile. So there has to be a person who is responsible in that company who creates a page. And the page is always linked to a profile. A page cannot be created without a profile on Facebook. Facebook is a So we can also say that we need if we want a page to run, we will need an admin. So without profile, we can't have an admin to run our page or something. Yeah, very like right. So that is also way to say it. A point basically is so. Basically, आपको एक person होना पड़ेगा who is admin of that page. You can have a profile without a page, but you cannot have a page without a profile. तो अगर आपको बिजनेस का पेज बनाना है तो आपको एक प्रोफाइल होनी पड़ेगी जिससे बनेगा. In Facebook, for a business page to be there, you have to have a profile. Clear? So, Yes, sir. I have a doubt. Yeah, tell. Where I used to study for my coaching, they do not have a profile, but they have a Facebook page. Yeah, you cannot see who is the admin of that profile of the page, but there has to be an admin who has created the page. Now, if you go to my Facebook page, I've got many Facebook pages, not one page. I've created multiple Facebook pages, and many pages I'm running and working, like VG Portfolio, Cakeway, Udemy Coupons, My Cake Shop, multiple. You won't know who are the admins there, but I am the admin who is behind that. So profile is always Madhukar Chopra, the same name. The business page can be of any name. It can be a Madhukar Chopra, like I have created, but it can be incidental. It can be VGP Portfolio, like the pages I am running here. I'll just give you an example. I'm sharing the screen again. So basically एक ऐसा हुआ ना कि हमने एक पेज बना लिया और उसके लिए कोई जो नहीं है कि सेम नेम और सेम प्रोफाइल ही हो अपनी. हाँ. वो एडमिन नहीं, कोई profile और भी same रन होगी, कर सकता है, बट वो जो पेज है वो कोई भी रन कर सकता है. उसके पीछे आपने किसी को एडमिन बना सकते हाँ, बना सकते. वो चीज होती है. हाँ, इसके लिए प्रोफाइल जो नहीं है बट पेज हुई है. आर्ट लॉन्च करके है, ये मेरे पेज है. तो अगर आप ये देखेंगे पेज है तो नाम है आर्ट लॉन्च. आप आर्ट लॉन्च जाके इफ यू सर्च इट यू वोंट गेट नेम मधुकर चोपड़ा आउट दैट, राइट? क्योंकि आपको मधुकर चोपड़ा का वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा, बट दैट इज द पेज. लेकिन उस पेज को बनाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए. क्लियर? अब कुछ चीजों में आते हैं. मैं आई एम कमिंग टू दिस एंड जस्ट हियर मी आउट वेरी नाइसली. कौन सा अच्छा होता है नेहा प्रोफाइल की पेज? So for business, page is better. And why is that? Because people would more connect for business purposes on page, and friends and family would connect more on Facebook file. Now this hear me out. You cannot create a profile in name of a business because जब Facebook को पता चलता है वो बंद कर देगा. The profile has to be of a genuine person. When you are using the profile and you will be using multiple times, they will be asking you check. Send the name of the persons. आपसे आधार कार्ड मांग सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड मांग सकते हैं. Whatever means you have to submit the documents. So if it is the name of a business like something else, you cannot submit a voting card or something like that. In that case, you have to have a page. दूसरा, you cannot target or run ads on profile. You have to have a page. So अगर आपने कोई भी टारगेटिंग करनी है, किसी भी तरह से लोगों पे रीच करना है, तो अपने पास पेज होना चाहिए. Now, मैं लास्ट टाइम फेसबुक का बात किया था, and I told you Facebook is one of the what you say richest companies in the world. And what is the income of Facebook?
पायल, फेसबुक इनकम कहाँ से कमाती है? सर हम लोगों का जो डाटाज रहता है उसके बेसिस पे कैसे आता है, उसको पैसा कौन देता है? एड्स रन एड्स एड्स के। का। अगर मैंने हाँ, आपने मुझे देखा होता है 80%, 98%, नॉट 80%, 98% ऑफ द इनकम इज एड्स। आप अपने प्रोफाइल के ऊपर एड्स रन कर सकते हैं? नहीं, नहीं। तो आप कहाँ पे एड्स रन कर सकते हैं? पेजेस पे। पेजेस पे। तो फेसबुक को जो पैसा मिलता है वो पेजेस के एड से मिलता है। तो प्रोफाइल में आप अपना फोटो शेयर कीजिए एक तो, एंड 2 घंटा बाद आप देखिएगा यू विल बी गेटिंग 50 लाइक्स एंड मैनी पीपल विल बी शेयरिंग इट, बिकॉज प्रोफाइल की जो रीच होती है वो 10 से लेके 15% तक होती है, और जब एंगेजमेंट होता है इट कैन गो टू 50 और 100%। लेकिन आपकी पेज की रीच इज 2% और लेस। आप अगर अपने पेज पे कुछ भी शेयर करेंगे वो 2% लोग के पास नहीं पहुंचेगा। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? कैन यू सी द स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. Okay. Yes, sir. I am doing a Google search. Reach of Facebook page on. इसमें दिया हुआ है 4 main signals. It is down to 5% of the total audience. ये तब होता है जब एंगेजमेंट होता है। बिना एंगेजमेंट योर रीच इज नॉट मोर देन 1 or 2%. The reach of Facebook page is very 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 less, and there is reason behind it, because Facebook wants to earn money from you. इन केस आपका एड्स या आपकी जो बिजनेस का मोटो है दूसरे तक पहुंच जाएगा, आप उसको पैसा नहीं देंगे तो कमाएगा कैसे? सो टू रीच पीपल ऑन फेसबुक पेज you have to spend money. Organic is more or less dead on Facebook, as you will see. No. It is saying it is not dead, but it is very 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 hard to reach and is declining like anything. Now this all works by Facebook algorithm. Everything works on Facebook algorithm. So basically आपको समझना पड़ेगा कि अगर Facebook में आपको रीच करना है बिजनेस का, आपको टारगेट करना है, you have to use Facebook algorithm, use the ads to do that. And secondly, your content has to be too good to get engagement and get viral. Right? अब मैं next portion में आता हूँ. So I have covered personal. Then there is Facebook shop. Have you seen Facebook shop anywhere? Have you seen Facebook shop or something like that? सर फेसबुक मार्केट। Not market. Facebook shop. Facebook market भी दिखाता हूँ, Facebook shop भी दिखाता हूँ. I'll show you all that. Okay. Now let's me go to my Facebook. One second. Now this is my cake shop, you can see, and this is my shop. Can you see this shop? यस सर। So Yes, these sir. things I can purchase. मैं दूसरी shop में जाता हूँ.
So here I can go to this conscious buyer, which is a sponsor shop. Where is that? Take away what happened to, yeah, this is it first. I can go to the shop page and I can choose any cake and I can choose buy now or give a message. So they'll get a message and I can buy from that. So this is called a Facebook shop. Here you can list your products, right? Can you see it? Yes, sir. So on that Facebook page, you can have a shop, you can have menu, you can have reviews and multiple things. This can happen only on your business page. Your personal profile cannot have a shop, cannot have a review section, doesn't have all these things. So these are the advantages. Your personal profile doesn't have an address and the link to your website. It doesn't have who are the followers and all, and there is no WhatsApp connection out there. Here you can click here and it will take me to the WhatsApp, and if I continue to chat there, if I continue to chat here, I'll go to the section where means website, my message will be there. See, this is a Quikr official account, and whatever I type, it will go to them. Straight away, the Facebook is connecting me to the WhatsApp of that account. Right? After that, there are groups. Now, you know what is a group? Any idea? What is a Facebook group? And how is it different from a page? Niharika, what is a Facebook group? Yeah, Divyansh, what is a Facebook group? Tell me. Sir, a Facebook group is a such type of, we can say, page or post in which there are lots of people connected following a similar type of content. Okay. Basically, you can join a Facebook group. There, people can post. You can manage it. It is similar to what is the difference between a Facebook group and a Facebook page, Rahul? So Facebook ग्रुप बेसिकली होता है कि एक ही कम्युनिटी के एक ही इंटरेस्ट टाइप के पर्सन सारे एक साथ कनेक्ट होके एक ही चीज के हिसाब से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और फेसबुक पेज होता है बेसिकली कि उसका एक ही एडमिन रहेगा, वो अपने हिसाब से उसको प्रमोट करने नहीं, दैट इज रॉन्ग। फेसबुक पेज के बहुत सारे एडमिन हो सकते हैं। हाँ, नहीं हो सकते हैं, एडमिन हो सकते हैं, बट उसका कंटेंट के हिसाब से करने लग रहा हूँ। स्टार्टिंग के हिसाब से एक का रहेगा और वो शेयर करने के हिसाब से अलग रहेगा। उसके अंदर एक ही टाइम पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करने के हिसाब से ग्रुप में यूज किया जाता है। नहीं, जरूरी नहीं है, ग्रुप में भी एक ही इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकता है। पेज के अंदर भी वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हिसाब से यूज किया जाता है और वो उसके हिसाब से हाँ वो चीज कह रहा हूँ, उस पर्पस से कह रहा हूँ सर मैं। ग्रुप में कम्युनिटी होती है। हाँ, उस पर्पस से कह रहा हूँ। You know what is a Facebook group? Are you in any Facebook groups? No, sir. Payal, are you in any Facebook groups? Payal, are you in any Facebook group? कोई Facebook group में आपने ज्वाइन किया है? हाँ सर। हाँ, तो Facebook group में क्या होता है? Means what you can do? सर फेसबुक ग्रुप में हम लोग एक टॉपिक के बेसिस पे हम पोस्ट कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट तो लोग ऐसे ज्वाइन करता है, उसके बाद कोई भी अपना पोस्ट शेयर कर सकता है एक पार्टिकुलर टॉपिक। अच्छा, तो उसमें आप अगर अपना पोस्ट शेयर करेंगे तो क्या वो वहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, कंपल्सरी जैसा आप अगर हाँ सर, अगर वो सेटिंग्स ना हो कि कोई भी उसमें पोस्ट कर सकता है तो वो आएगा। नहीं तो एडमिन का परमिशन अगर लगता है तो एडमिशन परमिट करेगा, उसके बाद ही वो शो करेगा। तो फेसबुक ग्रुप में एडमिन या मॉडरेटर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं उस ग्रुप को। तो अगर एडमिन वहाँ पे परमिट करेगा तो पोस्ट वहाँ जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। तो देयर इज अ मॉडरेशन लेवल इन द फेसबुक ग्रुप। फेसबुक ग्रुप एक कम्युनिटी के बनता है,
ना क्या एक फेसबुक ग्रुप में आप ऐड चला सकते हैं राहुल? नहीं सर, अगर आप उसके अंदर एडमिन अपने है, प्रमोट कर सकते हैं, बस इसके ऐड रन नहीं कर सकते। आप अपना मतलब आप अगर ग्रुप के एडमिन है तो भी आप ऐड चला सकते कि नहीं? मान लीजिए ये आप तो उस मैंने ट्राई नहीं किया सर। बेसिकली अगर आप उस ग्रुप के एडमिन है तो भी आप फेसबुक में ऐड नहीं चला सकते। नहीं चला सकते, मेरे को जितना लग रहा है, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया सर। फेसबुक ग्रुप में आप ऐड नहीं, बिकॉज दिस इज अ कम्युनिटी, दिस इज नॉट अ बिजनेस। ओके सर, ओके फेसबुक ग्रुप की रीच लिमिटेड बिजनेस रहेगी उस पेज के नहीं हिसाब ज्यादा से। रहेगी, पेज से बहुत ज्यादा ग्रुप रहेगी। का ग्रुप हाँ, का ज्यादा होता है ग्रुप का रीच के हिसाब से, बट प्रमोशन एक वहाँ पे कुछ प्रमोशन एक नहीं हो चीज होती सकता। है ना सर, हाँ वो नहीं हो सकता, उसकी कहीं ना कहीं पे अपनी लिमिटेशंस होती है। फेसबुक वो पेज चीज की लिमिटेशंस होती है, फेसबुक ग्रुप की लिमिटेशन, फेसबुक ग्रुप की पोस्ट ज्यादा रीच करती है देन द पेज, बट group is a community and it is a business non-business community, and you cannot advertise the things, you can moderate it लेकिन एडवर्टाइज नहीं कर सकते। क्लियर? तो मैंने फेसबुक में या यस नहीं आएगा सर फेसबुक ग्रुप जो होता है वो तो प्राइवेट होता है ना, लाइक जो ये ज्वाइन प्राइवेट हो करता सकता है, है पब्लिक हो सकता है, ज्वाइन कर सकते हैं लोग, उसमें दे सकते हैं, उसमें डिपेंड करता है। जो एडमिन होता है ना, जो ग्रुप क्रिएट करता है, वो कंट्रोल करता है कि क्या क्या कर सकते हैं। वो कंट्रोल कर सकता है कि सीधी पोस्ट चली जाए, वो कंट्रोल करता है कि मेरे को देखे बिना पोस्ट नहीं जाए, वो कंट्रोल करता है कि किसको ग्रुप में रखना है, किसको निकालना है। आप जब ज्वाइन करते हैं जरूरी नहीं कि आप सीधे ज्वाइन हो जाएंगे, एक परमिशन लगती है, जो एडमिन होता है वो परमिट करता है प्राइवेसी कंसर्न्स। प्राइवेसी कंसर्न। तो ग्रुप पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, इन्विटेशन अगर ओनली भी हो एडमिन सकता है, अलाउ करता है तो ही हम ज्वाइन कर तो सकते ही हैं, ज्वाइन कर एंड सकते जो उसमें मेंबर्स होंगे सिर्फ वो लोग ही तो व्यू कर सकते हैं ना हैं। अब वो पोस्ट। लोग व्यू कर सकते हैं, उसके बाद आप मेंबर्स पोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एडमिन अलाउ करेगा तभी। उसके बाद एडमिन ये भी कर सकते हैं कि मॉडरेट करेगा, आप पोस्ट डालेंगे तो बाकी मेंबर को तभी दिखेगा कि एडमिन बोलेगा वो पोस्ट दिखनी चाहिए। एडमिन अपने नीचे कुछ मॉडरेटर्स को भी रख सकता है। बड़ा बड़ा जो ग्रुप्स होते हैं तो उसके अंदर एडमिन खुद नहीं करता, कुछ लोगों को मॉडरेटर्स रखता है। यहाँ पे आते हैं रोल्स। तो आज एक्चुअली में अपने पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि बहुत डिटेल टॉपिक है, तो और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पर मैं चाहता था कि आप लोग को एक ओवरव्यू रहे, क्योंकि मैं फेसबुक पे ऊपर आपका बहुत काम करूंगा, तो मैं चाहता था कि कम से कम जो आए उनको थोड़ी सी नॉलेज रहे कि क्या है, राइट? तो फेसबुक में अपने जो कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल बना सकते हैं, पेज बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, इवेंट बना सकते हैं। इवेंट मतलब अपने जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो वी कैन क्रिएट अ इवेंट। अभी आपको एक ग्रुप का भी एक सैंपल दिखा देता हूँ, तो आपको एक आइडिया हो जाए व्हाट इज अ ग्रुप एंड हाउ इट वर्क्स। चलिए मैं फेसबुक में आ जाता हूँ इसको। So I create another page which is ये देखिए ग्रुप्स है। चलिए मेरी एक ग्रुप है, मान लीजिए आर्ट लवर्स लाउंज, ये ग्रुप मैंने दिखाया, इसमें अलग अलग मेंबर्स हैं, तो इसके अंदर कोई भी पोस्ट कर सकता है। किस तरह ग्रुप है, पब्लिक है, विजिबल है, इसके कौन से मेंबर्स हैं, तो इसके जो ये मेंबर्स हैं यही लोग खाली देख सकते हैं इंफॉर्मेशन, इनको छोड़ के और कोई भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता। यहाँ पे किसी का रिक्वेस्ट अगर आता है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आता है, फिर मैं अप्रूव करता हूँ, तभी वो मेंबर बनते हैं। कोई पोस्ट अगर मेंबर देता है तो यहाँ पे उसकी पेंडिंग पोस्ट रहती है, जब मैं यहाँ पे से अप्रूव करता हूँ तब वो पोस्ट जाती है। अभी तो सबको अप्रूव किया हुआ है, और यहाँ पे अपने ग्रुप रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज मुझे पता चलती है कि क्या क्या एक्टिविटीज हुई, किसका पोस्ट आया था, क्या आया था, किसको मैंने परमिट किया था, एंड ऑल दोस थिंग्स आ गया। सो ये ग्रुप है। तो मैं अभी आपको दिखा रहा था पेज। ग्रुप देखने में इस तरह का लगता है। ग्रुप्स के अंदर यू कैन हैव रूम्स, एंड इन रूम्स यू कैन हैव पीपल एंड यू कैन चैट। इनको मैंने ब्लॉक कर दिया। जैसे कुछ प्रॉब्लम करते हैं तो अपने ग्रुप्स के अंदर लोगों को ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है उस तरह से अपने लोगों को ब्लॉक कर सकते हैं। ग्रुप में क्या क्या मीडिया है, वीडियोस है, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लाइक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप इज ऑल्सो ऑपरेटेड दैट वे। उसके बाद इवेंट्स आती है, तो फेसबुक में इवेंट्स इज समथिंग लाइक दिस। हाँ, मार्केट किसी ने कहा था, मार्केट प्लेस में भी लोग चीजें बेचने के लिए शेयर कर सकते हैं। मार्केट प्लेस प्रोफाइल से काम करता है, पेजेस से नहीं। So if somebody wants to sell something on marketplace, so I can create a
listing here and I can sell it. ये हमेशा प्रोफाइल से काम करेगा. This will not work on page, right? So I can create a new listing, I can choose the item, लेकिन इसके अंदर बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं. उस प्रोडक्ट्स की चीजें होती कि यही चीजें अपने डाल सकते हैं. अपने को जैसे रेट्स जो दिए हुए हैं 1 रुपीज 2 रुपीज, ये यूजुअली है नहीं. तो ये लोग को जहां तक है फेसबुक बाद में ब्लॉक कर देगा. Usually the thing is that you can message it, but whatever showing it 1 rupees, it won't be actually sold at 1 rupees. They are giving, so the listing comes in the first page. Sorry. आपको अभी तक समझ में आ गया कि फेसबुक का ग्रुप क्या होता है? क्लियर? Yes. इवेंट्स क्या होती है? यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज अ इवेंट? यस सर. व्हाट इज इवेंट? सर कोई भी एक अपना कोई फंक्शन वगैरह है, कुछ ऐसा पब्लिक इवेंट ऑर्गेनाइज करने लग रहे हैं, तो उसको रिलेटेड अपने जो एडमिन या फिर जो भी उसका जो उसको मतलब मेंटेन करने लग रहा है, मैनेज करने लग रहा है, वो एक ऐसा पोस्ट क्रिएट कर देंगे जिसके ऊपर जाके अपने एक पोल क्रिएट कर सकते हैं और दूसरों के लिए एक नोटिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं. अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो उसको यस करेंगे तो उनके पास में एक पूरा उस पर्टिकुलर डे का टाइमिंग का एक नोटिफिकेशन उनके पास में जाके और उनको मतलब एक्टिव करने के लिए एक अलर्ट होता है बेसिकली, वो अपने कर सकते हैं. दैट इज नॉट समथिंग लाइक अ पेज और अ पोस्ट और अ ग्रुप. वो अलग होता है सर सारे. वो अलग से होता है. अच्छा, उसके अंदर क्या आपने ऐड चला सकते हैं इवेंट के लिए? हाँ सर, ऐड चला सकते हैं. वो उसके लिए अलग से अपने को चाहिए होता है. उस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड अपने ऐड चला सकते हैं, बट ऐड और इवेंट दोनों अलग अलग रहेगा. ऐड अलग रहेगा, ऐड हमेशा पेज से चलेगा. यस सर. अगर वो इवेंट एक पेज का इवेंट है तब आप ऐड चला सकते हैं. अगर ग्रुप का इवेंट है तब आप ऐड नहीं चला सकते. तो इवेंट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोफाइल और अ पेज. इवेंट क्रिएट करने के लिए भी आपको एक प्रोफाइल होनी चाहिए और पेज होना चाहिए, राइट? तो अब मैं वापस और प्रेजेंटेशन में जाता हूँ. थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा क्योंकि काफ़ी देर हो गया. तो मुझे लास्ट में कुछ आई वोंट बी शोइंग यू दिस मच नाउ बिकॉज द टाइम इज पासिंग वेरी फास्ट. तो फेसबुक का मैं गया तो उसके बाद एक मैसेंजर करके है. मैसेंजर आई वांट टू डिस्कस. यू नो व्हाट इज फेसबुक मैसेंजर? व्हाट इज फेसबुक मैसेंजर? आपको पता है क्या होता है, कैसे होता है, कैसे काम करता है? राहुल, यस सर. you know what is Facebook Messenger? So it is a kind of chat app basically generated by Facebook to connect with our Facebook friends or social media friends, which are just connected through our groups or all kind of things. बहुत ध्यान We से. can share. हाँ, particularly मतलब अपने उसके अंदर अपने पर्सनल एक पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से जो अपने फ्रेंड लिस्ट में एडेड है उनसे चैट और मतलब कनेक्टिविटी बना सकते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है. अच्छा, फेसबुक मैसेंजर पेज का होता है कि पर्सन का प्रोफाइल तो का होता है? अलग से वहाँ पे अपने रूम्स बना के और बनाना चाहे मैसेंजर के हिसाब से तो क्रिएट कर सकते हो, उसका मेरे को पता है. फेसबुक पेज का भी कोई मैसेजिंग का ऑप्शन है? एनी वो आइडिया? डायरेक्ट मैसेजेस के हिसाब से होता है, पेजेस के हिसाब से जो पर्टिकुलर अपने किसी एक कैसे बताऊंगा इस चीज को मैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर कोई चीज होती है फेसबुक पेज से रिलेटेड, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो उससे रिगार्डिंग अपने मैसेज रिसीव कर सकते हैं. और एक पूरा होता है जैसे मैसेंजर, फेसबुक प्रोफाइल मैसेंजर के हिसाब से अपने उसको यूज नहीं कर सकते. अब वेरी गुड. इस चीज तुमको आइडिया है बेसिकली, यू हाँ. हैव गॉट आइडिया. अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ. फेसबुक मैसेंजर बेसिकली व्हाट्सएप जैसा एक ऐप है विच इज यूज्ड फॉर द प्रोफाइल. इट इज नॉट विद द पेज. पेज के अंदर भी एक मैसेजिंग ऐप है लेकिन उसके बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है. फेसबुक पेज का जो मैसेंजर है दैट इज कॉल्ड फेसबुक इनबॉक्स, जो फेसबुक बिजनेस सूट में काम करता है. उसमें आप तभी मैसेज किसी को दे सकते हैं जब कोई पहले आपको मैसेज करे. सो इफ यू डू नॉट सेंड अ मैसेज टू मी, आई कैन नॉट सेंड अ मैसेज टू यू. सो उसमें जो चीज मैसेज हो सकता है वो तभी हो सकता है जब पहले कोई यूजर उसको मैसेज करे. पेज से पेज में मैसेजेस नहीं हो सकते. मैसेज इज ऑलवेज बिटवीन अ प्रोफाइल एंड अ पेज. ये मैं कुछ चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी का एक बिजनेस का, या आप उसको बोलेंगे भैया 50 जन को मैसेज भेज दो, तो एक बिजनेस मैसेज नहीं भेज सकता. तो बिजनेस तभी मैसेज भेज सकता है जब वो लोग पहले उस बिजनेस को मैसेज भेजें.
उसके बाद एक 24+1 रूल है। आपको आइडिया है राहुल व्हाट इज 24+1 रूल? तो ऐसे अब मेरे को समझ भी आ रहा है, बट अगर थोड़ा सा कुछ हो तो उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ। मेरे को पूरा अभी याद नहीं आ रहा है इस चीज का। आपको इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया था? दिव्यांश की मैसेंजर क्या होता है, पेज मैसेज क्या होता है, कुछ आइडिया था? सर मैसेंजर का यही आइडिया था कि बस वो एक चैटिंग का ऐप होता है। हाँ, तो अगर आप बिजनेस है, मान लीजिए आपका एक से सैलून है और आप रेगुलर उससे मैसेज लोगों को भेजना चाहते हैं, आप भेज पाएंगे यस सर, भेज सकते हैं। उस पेज से? अ, अगर आपका सैलून का पेज है तो उस पेज से आप सबको मैसेज भेज सकते हैं? यस सर। नहीं सर, आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे। यू कैन नॉट सेंड अ मैसेज यूजिंग मैसेंजर फ्रॉम अ पेज। पेज से मैसेंजर कनेक्ट नहीं होता। जब भी वो मैसेंजर का मैसेज जाएगा वो आपके प्रोफाइल से जाएगा। तो यहाँ पे जो नाम जाएगा वो दिवांश चौहान जाएगा, ना कि डिजायर सैलून या वॉट एवर द नेम इज। तो जो मैसेज जा रहा है वो पेज से नहीं जा रहा, वो प्रोफाइल से जा रहा है। तो पेज से अगर मैसेज जाएगा तो पहले उन लोगों को उस पेज के ऊपर मैसेज करना पड़ेगा, तभी पेज से आप मैसेज उनको भेज सकते हैं। जब तक वो स्टार्ट नहीं करे तब तक आप मैसेज नहीं भेज सकते, राइट? दूसरा, पेज से प्रोफाइल तक मैसेजेस जा सकते हैं। दूसरा, आप पेज से मैसेजेस भेज सकते हैं लेकिन एडवर्टाइजिंग मैसेजेस भेज सकते हैं। यू कैन सेंड योर मैसेजेस टू अदर पीपल यूजिंग फेसबुक एड्स, जिसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड मैसेजेस। क्या बोलते हैं? स्पॉन्सर्ड मैसेज या स्पॉन्सर्ड और लिमिटेड टाइम। हाँ, अब उसके बाद एक होता है 24+1 रूल फेसबुक का। 24+1 रूल इज 24 आवर्स प्लस 1 डे। तो अगर आपको कोई मैसेज भेजता है फेसबुक में 24 आवर्स में, आप उसको जितना मैसेज चाहें आप भेज सकते हैं। जैसे आपका एक मैसेज आ गया मधुकर चोपड़ा के बिजनेस पेज में, आई एम टेल मी योर डिटेल्स, सो आई कैन सेंड यू 10 मैसेजेस इन 24 आवर्स। लेकिन वो 24 आवर्स खत्म होने के बाद में सिर्फ एक ही मैसेज आपको और भेज सकता हूँ। 24+1, उससे ज्यादा अगर मैं मैसेज आपको भेजूंगा तो फेसबुक मुझे ब्लॉक कर सकता है, मुझे चेतावनी दे सकता है या मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है। कि ऐसा नहीं हो कि आपने किसी को एक मैसेज भेज दी, वो आपको कंटिन्यूस मैसेज भेज के परेशान करे। सो देयर इज ए 24+1। उसके बाद अगर आपने 1 मैसेज भेजा और किसी ने वापस मैसेज भेज दिया, फिर वापस आपके पास 24 आवर्स का टाइम रहता है जिसके अंदर आप उसको मल्टीपल मैसेजेस भेज सकते हैं। तो यू कैन नॉट यूज फॉर प्रमोशन अनलेस समबडी सेंड्स यू मैसेज अगेन। सर एक मिनट, मेरे को ये थोड़ा सा वापस बताइएगा, ये प्रमोशन के हिसाब से सही 24+1 था। हाँ, आपने एक 24+1 ऐड का चलाया, आपने एक ऐड चलाया, एक प्रमोशन दिया कि भाई मेरे यहाँ पे एक क्लिनिक चल रही है, अभी ये स्कीम चल रही है, या फ्री ले लीजिए। बेसिकली ये आपने किस हिसाब से यूज किया था? प्रोफाइल के अंदर तो ऐसा कोई रूल नहीं है। प्रोफाइल नहीं, पेज में मैंने कहा प्रोफाइल के अंदर आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो नहीं कर सकते, वो चीज मैं समझ गया, बट बेसिकली मान लीजिए मेरे एक डेंटल क्लिनिक है और मैंने एक ऐड चलाया, ऐड चला के मैसेजेस सबके प्रोफाइल में चले गए, मैंने मैसेज किया, उन्होंने एक मैसेज पूछा कि प्लीज सेंड मी द डिटेल्स। तो 24 आवर्स में उसको कई मैसेजेस भेज सकता हूँ कि आपको स्कीम है, आपको ये ऑफर है, आपको वो है, आपको ये है, वो है। 24 आवर्स में अगर भेजूंगा प्रमोशनल मैसेजेस भेज सकते हैं 24 आवर्स के लिए सर। उस 24 आवर्स के बाद में सिर्फ एक मैसेजेस उनको दे सकता हूँ। ओके, मतलब तो प्रमोट आवर इवेंट बेसिकली और प्रमोट आवर प्रोडक्ट बेसिकली। हाँ, इफ यू वांट टू प्रमोट आवर, क्योंकि अगर पेज के ऊपर मैसेज है तो प्रमोट करना ही चाहेंगे, पर्सनल बात तो आप करने में इंटरेस्टेड नहीं है। When we are talking about business, we are not there to chat and talk about the house and family and everything. वो लीड्स के हिसाब से जो इंटरेस्टेड पर्संस है उनके पास के लिए आपके पास 24 आवर्स का टाइम रहेगा। जब तक आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो अपना थॉट प्रोसेस क्या होता है, अपने लीड जनरेट हो, अपना प्रेजेंस क्रिएट हो, अपने को काम मिले, राइट, अपने प्रमोट कर पाए, वी आर विजिबल। तो वो विजिबिलिटी अपने उसमें उसको जब तक वो मैसेज नहीं भेजा तब तक तो मैं भेज ही नहीं सकते। और उन्होंने भेज दिया तो भी 24 घंटे के बाद अपने भेजेंगे तो सिर्फ 24 घंटे के बाद एक ही मैसेज भेज सकते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसके बाद सामने वाला जब बंदा भेजेगा उसके बाद ही अपने भेज सकते। इसमें यह नहीं कि अपना मैसेज जाएगा नहीं, लेकिन जाएगा और फेसबुक उसको अपने को बैन कर सकता है, अपने पेज को डीएक्टिवेट कर सकता है, डीपब्लिश कर सकता है। फेसबुक इसके खिलाफ में प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। सर इन शॉर्ट बेसिकली अपने ये बोल सकते हैं कि मैंने जैसे कोई एक अपना इवेंट या कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, हाँ,
किसी का मेरे पास में लीड आया, हाँ तो मैं 24 घंटे तक उस पर्टिकुलर पर्सन को पिंग कर सकता हूँ, पिंग जैसे कर सकते हैं, पिंग कर मैंने सकते किया हैं तो उसके अंदर, है ना। जिसके अंदर हाँ उसने वापस एक रिप्लाई कर दी ना, उसमें आप दे सकते हैं कि अगर हाँ आपको हाँ कोई प्रोडक्ट चाहिए आप यस दे दीजिए, जैसे उसने यस दिया फिर आपको बस 24 घंटे की एक वापस वीडियो चालू हो जाएगी। ठीक है, 24 आवर्स का वो हो गया। अगर 24 आवर्स में उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, उसके बाद 24 आवर्स के बाद में लास्ट में मैं एक मैसेज और भेज सकता हूँ हाँ इन माय एंटायर टाइम, आगे से रिप्लाई नहीं आए कि हाँ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिप्लाई मी, दैट्स हाँ इट। हाँ बस मतलब जैसे टच करना चाहेंगे, जैसे भी हाँ अपने जो भी अपना अप्रोच है हाँ वो लगाकर 24 घंटे के बाद में, मतलब इन शॉर्ट यही हुआ, हाँ, इन शॉर्ट यही हुआ है ना। उससे। ओके सर, और ओके ये सर। धीरे धीरे व्हाट्सएप बिजनेस में भी चालू हो गया। ये जो चीज है 24 आवर्स प्लस 1, अच्छा, ये ये बिजनेस में भी व्हाट्सएप आ गया। ओके बिजनेस में भी आ गया। तो व्हाट्सएप ओके बिजनेस में भी ओके आप बार बार प्रमोशनल मैसेजेस भेजेंगे तो सामने वाला आपको ब्लॉक कर सकता है। फेसबुक इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं फेसबुक, लेकिन फेसबुक में काफी स्ट्रिक्ट है। आपके खिलाफ अगर कंप्लेंट्स आने लगती है तो आपको ब्लॉक कर देता है, आपके पेज को हटा देता है। क्लियर? मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ये सब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर डिजिटल मार्केटिंग हार्डकोर थिंग्स। ये आपको नॉर्मल में कहीं भी आप कोर्सेज वोर्सेज करेंगे आपको ये सब नहीं बताई जाएगी। इंस्टाग्राम में आज ज्यादा टच नहीं करूंगा, पर मैं इसमें बता सकता हूँ, इसमें भी दो तरह की प्रोफाइल्स होती है। इसमें बिजनेस प्रोफाइल होती है और प्लेन प्रोफाइल होती है। इसमें किस तरह की प्रोफाइल होती है? बिजनेस और प्लेन। क्लियर? यस सर, यस सर। अच्छा पायल, मेरे को ये बताओ कि अपने पास एक बिजनेस प्रोफाइल हो सकती है बिना नॉर्मल प्रोफाइल के इंस्टाग्राम में? बिजनेस प्रोफाइल, हाँ। मतलब यू कैन क्रिएट अ बिजनेस प्रोफाइल विदाउट हैविंग अ पर्सनल प्रोफाइल नो ऑन इंस्टाग्राम? नहीं, मैं आपसे नहीं, नो सर। पायल से पूछ रहा हूँ। आइडिया नहीं है सर। ओके, आदिति, एनी आइडिया? No, sir. On Instagram, you can create a business profile without having a personal profile. Instagram business works in totally different way. Facebook में पेज होता है, प्रोफाइल नहीं. So you can create a page only with a profile. So अगर आपके प्रोफाइल नहीं है तो पेज नहीं बन सकता. लेकिन इंस्टाग्राम में आप अपनी प्रोफाइल को बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं. और चूंकि आप बिजनेस प्रोफाइल यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम में जो कंट्रोल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं. यू डू नॉट हैव द कंट्रोल विच यू हैव ऑन द फेसबुक. इंस्टाग्राम में ग्रुप्स नहीं होते. इंस्टाग्राम के अंदर आप इवेंट्स नहीं क्रिएट कर सकते. इंस्टाग्राम में इवेंट्स का लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं लेकिन इंस्टाग्राम में इवेंट्स नहीं क्रिएट करते. लेकिन इंस्टाग्राम की कुछ चीजें और होती है विच इज वेरी गुड. इंस्टाग्राम इज मोर ऑफ द फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म और इसमें जो बिजनेस भी ऑपरेट होता है वो उसी तरह का बिजनेस ऑपरेट होता है. तो बेसिकली इंस्टाग्राम में यू कैन हैव अ बिजनेस प्रोफाइल, लेकिन बिजनेस प्रोफाइल होने से आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलते हैं जो यहाँ पे नहीं मिलते हैं. उस प्रोफाइल से आप पोस्ट कर सकते हैं, स्टोरीज बना सकते हैं, रील बना सकते हैं. बिजनेस प्रोफाइल होने से शॉप कर सकते हैं आप, फिर उसमें ऐड चला सकते हैं. लेकिन पर्सनल प्रोफाइल से आप इंस्टाग्राम में ऐड नहीं चला सकते. लेकिन जैसे ही आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बिजनेस होती है उसकी रीच काफ़ी घट जाती है, बिकॉज अगेन फेसबुक को बिजनेस से कमाना है. So if you are having a business profile on Instagram, your reach will be less, but you have the option to run the ads. सर इंस्टाग्राम पे भी सेम एल्गो चलता है, मतलब कि अपने अगर Instagram बिजनेस का में algo अलग कन्वर्ट कर होता है, लिया. Facebook का algo अलग है. नहीं, बेसिकली वही पूछ रहा हूँ मैं कि जैसे इंस्टाग्राम पे हमने एक प्रोफाइल अपना बनाया हुआ है पब्लिक प्राइवेट के हिसाब से, हमने उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया. हाँ. तो उसकी जो रीच है वो कम होगी कि ज्यादा हो जाएगी? उसकी रीच, ऑर्गेनिक रीच कम हो जाएगी लेकिन आप एड रीच बढ़ जाएगी आपकी. आप एड से ज्यादा रीच कर सकते हैं. बट उसके अंदर तो अपने जैसे बिजनेस, जैसे इंस्टाग्राम बिजनेस अपने यूज करते हैं तो उसके एनालिटिक्स और स्टैट्स वगैरह सब कुछ अपने शो कर सकते हैं सिर्फ बिजनेस अकाउंट के थ्रू. हाँ. नॉर्मल अकाउंट में वो अपने को नहीं मिलता. तो उसके अंदर मेरे ख्याल से रीच ज्यादा होना चाहिए फॉर इंस्टाग्राम, नॉट फॉर फेसबुक. उसमें रीच ज्यादा मिलती है, रीच आपको कम ही मिलती है. हाँ, आपको इनसाइट ज्यादा मिलती है जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं. आपको दिखता है business मतलब वो बेसिकली आपको इनसाइट्स मिलती है, जो बोलते हैं ना आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, आपको इनसाइट्स मिलता है. हाँ 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 हाँ. एनालिटिक्स एनालिटिक्स ज्यादा, आपको एनालिटिक्स बहुत ज्यादा मिल जाती है. आप हैशटैग्स को देख सकते हैं, कौन सा हैशटैग्स काम कर रहा है, कौन सा नहीं काम कर रहा, आपकी कौन सी स्टोरीज काम करी है. तो उससे एनालिटिक्स ज्यादा. बेसिकली किसी को अगर अपने इंस्टाग्राम ग्रो करना है तो उसको बिजनेस रखना चाहिए या फिर
नॉन बिजनेस रखना चाहिए। नहीं, बिजनेस रखना चाहिए। कोई भी काम आपको फेसबुक का पेज भी ग्रो करना है तो वो बिजनेस रखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के साथ वो जो टूल्स मिलते हैं वो कहीं नहीं मिलते हैं, लेकिन उसके साथ में फेसबुक पैसा लेता है। ओके। लेकिन इंस्टाग्राम में एक पोर्शन है जिसको बोलते हैं क्रिएटर्स, यस या सर। फेसबुक में जो है क्रिएटर्स। तो व्हेन यू आर Creators है, क्रिएटर्स, yes, sir. तो व्हेन यू आर क्रिएटर, तो उसमें क्या होती है, फेसबुक और इंस्टाग्राम को रीच देते हैं। अगर आपका कंटेंट उतना अच्छा है, उतना एंगेजिंग है, उतना इंटरेस्टिंग है और लोग आपको देखना चाहते हैं, तो ये इन्फ्लुएंसर की स्टेटस में आ जाते हैं, तो उनका रीच अच्छी मिलती है, क्योंकि ऑर्गेनिक रीच बहुत अच्छी होती है। बट इट इज फॉर दोज टाइप ऑफ बिजनेस एंड नॉट नॉर्मल बिजनेसेस, राइट। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ क्योंकि काफी कुछ कवर करना है एंड आई एम लैगिंग वेरी फार बिहाइंड। इसको छोड़ के मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज के दिन से आपको 2 आवर्स, सो उसको छोड़ के लिंक्डइन है, उसके अंदर भी पर्सनल प्रोफाइल बना सकते हैं, फिर पेज बना सकते हैं, उसमें भी ऑर्गेनिक रीच है, पेड रीच है, ट्रैकर है। लिंक्डइन इज वेरी गुड B2B प्लेटफॉर्म। सेम स्टैंड्स फॉर ट्विटर, उसके अंदर भी प्रोफाइल होती है, उसके अंदर ट्वीट्स होते हैं, इस मैसेजेस का जिसकी कैरेक्टर की लिमिट होती है। देयर इज एड मैनेजर, यहाँ सब में ट्रैकर्स लग सकते हैं, जो अपनी वेबसाइट में ट्रैकर्स लग सकते हैं। कोरा करके एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं, तो वहाँ पे अपवोटिंग होती है, ट्रैकर्स होता है, प्रिंटर्स। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क मी, तो उसके बारे में आपको डिटेल देता हूँ। मैंने कुछ और प्लेटफॉर्म्स शेयर किए थे, किसी को किसी में इंटरेस्ट है कुछ समझने में? यस सर, मेरे को ट्विटर और इस पे समझना है कि अपने ट्रैकर वगैरह और ये सब एड्स वगैरह कैसे चला सकते हैं। हाँ, ट्विटर इज मोर लाइक टू सेलेबल्स और ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, तो उसके वजह से देखिए कोई भी एक चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे लिंक्डइन हो, सब में एक ट्रैकर्स होते हैं, और वो ट्रैकर्स आप अपने वेबसाइट में लगा सकते हैं। उसके लिए यूजुअली मैंने जैसे स्टार्टिंग में बस टाइम नहीं था, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू लगता है, या डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो वो एक्चुअली ट्विटर को बताता है कि कौन आपकी वेबसाइट में विजिट किया था, तो आप उसको फिर वापस ट्रैक करके उसको वापस रीटारगेट कर सकते हैं। तो जो भी ट्रैकर की होती है वो रीटारगेटिंग होती है, तो दैट इज द थिंग। तो आज मेरे हिसाब से 6:33 हो गए, मैं आपको 15-20 मिनट में एक ऐड चला के दिखा देता हूँ, एंड वील टॉक लेटर फॉर टुमारो, जिसके अंदर मैं और भी आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा। टुमारो कम से कम ध्यान रखिएगा, क्योंकि आई विल बी गोइंग टोटली ऑन डिजिटल मार्केटिंग ऑडिट, किस तरह से एक बंदे की डिजिटल मार्केटिंग ऑडिट करेंगे। सो आई विल बी टचिंग दैट। तो मेरे पास ये सब करने का कल टाइम नहीं रहेगा, तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। सर या रिक्वेस्ट है बोलो। सर, फेसबुक पिक्सल के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे आप? मैं अभी बताता हूँ, अभी मैं आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक? ओके। अभी मैं ऐड चलाऊंगा तो आपको फेसबुक से बताऊंगा। चलिए मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग में जाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसका किया, एंड लेट मी क्रिएट ए ऐड। फेसबुक में आप जाते हैं तो एक फेसबुक में बिजनेस अकाउंट होता है, तो वो मैं और लेटर में डिस्कस करता हूँ। बिजनेस अकाउंट से आप ऐड चला सकते हैं या पर्सनल अकाउंट से ऐड चला सकते हैं। ये मैं एक पर्सनल अकाउंट से ऐड चला रहा हूँ, ऐड मैनेजर से। आप बिजनेस अकाउंट चूज करके बिजनेस अकाउंट से भी ऐड चला सकते हैं। तो मैं एक ऐड क्रिएट करता हूँ। तो ऐड में जब जाते हैं तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट करने का। उसके 3 हिस्से होते हैं, कैंपेन, एड सेट्स एंड ऐड। तो आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। सबसे ऊपर में आपका कैंपेन होता है। एक कैंपेन में आपको बहुत सारे एड सेट्स बना सकते हैं, उस एड सेट में आप बहुत सारे एड्स बना सकते हैं। सो कैंपेन हैज वन ऑब्जेक्टिव कि किस लिए अपने वो कैंपेन बनाना है। उसमें से अपने अलग अलग एड सेट्स बना सकते हैं, जिसके अंदर अपने अलग अलग क्या बोलते हैं ऑडियंसेस चूज कर सकते हैं, और हर ऑडियंस के अंदर फिर अपने और अलग अलग एड्स बना सकते हैं। एड्स का मतलब होता है उसमें फोटो और टेक्स्ट क्या लगाना है वो अपने बना सकते हैं, राइट। सो आई जस्ट क्रिएट वन फॉर यू एंड आई शो यू कि हाउ इट इज बीइंग डन। तो सबसे पहले क्या होता है कैंपेन। कैंपेन के अंदर होती है एड सेट्स, एड सेट्स के अंदर होता है ऐड। सो आई एम क्लिकिंग ऑन द टू क्रिएट अ। अब जैसे ही मैं करूंगा तो आप यहां पे देख सकते हैं कुछ चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस Yes, सर। sir. अवेयरनेस का कैंपेन का क्या मतलब हुआ? लोगों को पता चले
इसमें दो तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस, इसमें ऐसे लोगों को दिखाएंगे जो सबसे ज़्यादा आपको रिमेंबर करेंगे। रीच का मतलब होगा सबसे ज़्यादा लोगों को दिखाएंगे। शो योर एड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, अगर आपको चाहते हैं कुछ ऐसे लोग जो आपको रिमेंबर बार बार करें, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कुछ लोगों को जो बार आपको रिमेंबर करेंगे उसको बार बार दिखाया जाएगा। लेकिन रीच के अंदर क्या किया जाएगा, बहुत सारे लोगों को ये ऐड दिखाया जाएगा। उसके बाद ट्रैफिक का मतलब है उनको अपने को कहीं पे लेके जाना है। ये जो ट्रैफिक का ऐड होता है, ये अपने वेबसाइट में उसको लेके जा सकते हैं, यूट्यूब में लेके जा सकते हैं, अपने व्हाट्सएप में उनको लेके जा सकते हैं। तो व्हेन यू रन अ ट्रैफिक ऐड, तो उस ऐड का जो मोटिव रहता है कि उसको कहीं पे लेके जाया जाए। क्लियर? सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन लाइक अ वेबसाइट, ऐप, फेसबुक इवेंट और अ मैसेंजर और कन्वर्शन, बहुत जगह अपने लेके जा सकते हैं। इसके बाद होता है एंगेजमेंट। जिस टाइम आप फेसबुक को पेज पोस्ट को बूस्ट करते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव हमेशा एंगेजमेंट होता है। तो इफ यू वांट टू गेट मोर पेज लाइक्स, इवेंट रिस्पॉन्सेज और पोस्ट रिएक्शन और कमेंट्स एंड शायद, तब एंगेजमेंट किया जाता है। तो अगर आपको वेबसाइट के ऊपर लोगों को लेके जाना है, तब एंगेजमेंट चला के मतलब नहीं है, देन यू हैव टू रन फॉर ट्रैफिक। ऐप इंस्टॉल का मतलब होता है कि आप चाहते हैं आपका अगर कोई ऐप हो उसको लोग इंस्टॉल करें, तो ये वाला ऐड चलाया जाता है। शो यू ऐड टू पीपल मोस्ट लाइकली टू डाउनलोड एंड एंगेज विथ ऐप। उसके बाद होता है वीडियो व्यूज। अगर आपका कोई वीडियो है, आप उसको टारगेट करके चाहते हैं कि बार बार वीडियो देखिए, जैसे आपका टेस्टिमोनियल वीडियो है या आपका प्रोडक्ट वीडियो है या उस तरह की कोई वीडियो है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लीड जनरेशन मतलब फेसबुक अपना एक फॉर्म बना देगा, उस फॉर्म के अंदर कोई भी भर के हाथों मैसेजेस ले सकता है, मतलब उसके डेटा ले सकता है, नेम, ईमेल एड्रेस। यहाँ पे एक पूरा फॉर्म बनाने की ऑप्शन होती है। दूसरा, अपने वेबसाइट पे भी एक लैंडिंग पेज बना के वहां पे भी डाइवर्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह से ट्रैफिक काम करता है, उस तरह से ये भी काम कर सकता है। बहुत कुछ चीजें इन दोनों में सिमिलर होगी, लेकिन यहाँ पे उन बंदों को भेजेगा जो आप चांसेस फेसबुक को लगेगा कि ये बंदा नाम नंबर दे देगा या आपकी डेटा दे देगा। यहाँ पे उन लोगों को भेजेगा जो आपको नाम नंबर नहीं देगा। तो इसके रिजल्ट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपकी वेबसाइट में जाएंगे लेकिन वो नंबर नहीं देंगे, क्योंकि वो ट्रैफिक मोटिवेटेड से जा रहे हैं। मैसेजिंग ऐप से आप मैसेज भेज सकते हैं उनके इनबॉक्स में, आप उनसे मैसेजिंग कन्वर्सेशन कर सकते हैं। दिस इज कंसिडरेशन फेस। कन्वर्जन मतलब आपकी अगर शॉप होती है तो आप उसको कनेक्ट करके अपने वेबसाइट पिक्सल से, जब बोलते हैं ना फेसबुक पिक्सल, तो उससे आप कनेक्ट करके यहाँ पे डेटा ले सकते हैं। कैटलॉग सेल्स, आप उससे आपकी कोई कैटलॉग से सेल करनी है तो भी आप उसको कन्वर्जन में दे सकते हैं। आपका स्टोर ट्रैफिक मतलब आप अपने एक एरिया से टारगेट करके उसको भेज सकते हैं कि अपने एरिया तक आए। तो दीज आर द टाइप ऑफ एड ऑब्जेक्शन यू है। लेकिन क्या है ना, अपने पास 6:40 हो गया, सो आई डो नॉट हैव दैट मच टाइम, सो आई विल गो फॉर द ट्रैफिक एड। जैसे ही आप एक ट्रैफिक एड चलाएं, तो यहाँ पे आप 3 नाम दे सकते हैं। क्या क्या चीज का? कैंपेन, एड सेट एंड एड। सबसे ऊपर कैंपेन होगा, इंक्लूड्स द कैंपेन ऑब्जेक्टिव एंड द बजट ऑप्टिमाइजेशन। सेकेंड है डिटरमाइंस द ऑडियंस, प्लेसमेंट एंड शेड्यूल। तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, आपको बजट आप दोनों जगह सेट कर सकते हैं। स्पेंडिंग यहाँ भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ भी। So you have 2 places to control your budget, here and here. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव ले लिया तो उस एडसेट का ऑब्जेक्टिव ही ट्रैफिक ही रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव जो सेट होता है वो यहाँ पे होता है। एडसेट के अंदर अपने ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। एक कैंपेन के अंदर कई एडसेट्स क्रिएट हो सकते हैं। और उसके बाद ऐड के अंदर सिर्फ क्रिएटिव का मतलब उसमें फोटो और टेक्स्ट खाली अपने चूज कर सकते हैं। मैं वापस आ रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, पूछना चाहता हूँ कि किसी को समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आपको समझ में आया अभी तक? एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी? जाओ राहुल, तुम्हारे। यस सर। सो एड सेट्स में क्या रहता है, आपने बताया? मैंने कहा एड सेट्स के अंदर अपने ऑडियंस चूज कर सकते हैं, किस तरह की ऑडियंस हो। ऊपर में कैंपेन होती है, ट्राइंगल स्ट्रक्चर है। कैंपेन के अंदर बहुत सारे एड सेट्स हो सकते हैं, उस एड सेट्स में बहुत सारे ऐड हो सकते हैं। कैंपेन के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं कि भाई ट्रैफिक चाहिए, मैसेज चाहिए, अपने को कन्वर्शन चाहिए, अपने को लीड्स चाहिए, अपना ब्रांड अवेयरनेस चाहिए। तो जब भी आप कैंपेन चूज करेंगे, एक टॉपिक के एक ही कैंपेन बन सकती है। उस कैंपेन के बनाने के बाद में मतलब आप मल्टीपल कैंपेन्स बना सकते हैं, लेकिन कैंपेन का एक ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जितने भी उसके नीचे जाएंगे उनका सबका सेम ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। जैसे ही आप सेकेंड लेवल में जाएंगे, वहां से आप ऑडियंस और स्पेंडिंग लिमिट चूज कर सकते हैं। जो तीसरा जो लेवल होगा
वहां पे आप क्रिएटिव करिए। मैं आपको एक पूरा एक बना के दिखाऊंगा। इट इज 10:40, मैं 10 से 15 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट करता हूँ। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। आई यूजुअली मैं अपने शेड्यूल तक ही रहता हूँ। मैं आई डो नॉट ट्राई टू गो ओवर दैट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? तो ये ऑप्शनल है, अपने यहाँ भरना चाहें यहाँ भर सकते हैं, बाद में भरना चाहें बाहर भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं तीनों का नाम दे सकता हूँ। ओह सॉरी, वेरी सॉरी, मुझे बता दिया कीजिए, क्योंकि बात करते करते यह मैंने ट्रैफिक को चूज किया था। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। सब में अलग अलग आता है, सब में एक ही चीज़ नहीं आती। जैसे पोस्ट एंगेजमेंट चूज करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सीधा सीधा, पोस्ट चाहिए, पेज लाइक चाहिए कि इवेंट्स पे रिस्पॉन्स चाहिए। ऐप इंस्टॉल्स में आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे वीडियो व्यूज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वीडियो व्यूज के नेक्स्ट पेज में जाकर आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। लीड जनरेशन में होगा तो आप अपने लैंडिंग पेज, यहाँ भी ऑप्शन नेक्स्ट पेज में आपको करना पड़ेगा। लैंडिंग पेज में चाहिए कि आपको खुद को चाहिए, तो आई गो फॉर ट्रैफिक। तो आपको एक मैं कम से कम करके दिखाऊं तो कैसे होता है। चलिए, अब यहाँ पे अपने को नाम देना पड़ेगा। वॉट एवर द नेम ऑफ द कैंपेन इज, बेसिकली इसको कर सकता हूँ इंटर्नशिप। जितना अच्छा नाम देंगे आपको उतना बाद में याद रहेगा। स्पेशल एड्स, कोई भी तरह का, मैं इसमें बाद में डिस्कस करूंगा। एड जो स्पेशल एड्स होता है वो यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि ये मैं जिस सोशल इश्यूज का एड होगा, ये पॉलिटिकल एड होगा, इसमें आपको ये टिक करना पड़ेगा। और जैसे ही आप टिक करेंगे आपके 70% टारगेटिंग हट जाती है। स्पेशल ऐड को आप बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं कर सकते, और उसमें एक डिस्क्लेमर रहता है जिसमें आपको बोलना पड़ता है कि ये ऐड फेसबुक का ऐड नहीं है, ये मेरा ऐड है। आप प्रूव करेगा कि नहीं करेगा वो बहुत बात की बात है। तो ऐड का कैंपेन है ऑक्शन। फेसबुक का ऐड जब भी चलता है उसका कोई फिक्स रेट नहीं होता, ये हमेशा ऑक्शन पे चलता है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एडिट। आपको कोई ऑप्शन और दिख रहा है? ए बी टेस्टिंग, ये हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं। ए बी टेस्टिंग मतलब अपने 2 या 3 तरह के ऐड सेट्स इसमें बना सकते हैं, क्योंकि देखिए कैंपेन में से मैं निकल गया। कैंपेन में अपना जो चूज होना था वो हो गया। कैंपेन में जो चूज होना था, यहाँ पे मैं स्पेंडिंग लिमिट भी कैंपेन में सेट कर सकता हूँ। कैंपेन में अगर मैंने बोल दिया कि 1000 रुपये का स्पेंड होना है तो 1000 रुपये के अंदर अंदर ही वो स्पेंड करेगा। 2000 की लिमिट कर दूंगा तो इस कैंपेन की लिमिट सब एड सेट्स मिला के वो 2000 रुपये को ऊपर नहीं खर्चा करेगा। ठीक है, तो आई कैन सेट, लेकिन ये जरूरी नहीं होता। यहां पे अपने सेट कर सकते हैं। द कैंपेन स्पेंडिंग रेट इज टू लो। देखो यहाँ पे देखिए, द कैंपेन स्पेंडिंग मस्ट बी एटलीस्ट 5000 फॉर द करेंसी। अब जब आप कैंपेन लेवल पे सेट करते हैं तो ऐड की एक स्पेंडिंग लिमिट फेसबुक अपने आप बताता है कि इतने रुपये कम से कम होने चाहिए। आप कैंपेन को 50, 100, 200 रुपया में नहीं चला सकते। हर कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट ये अपने आप फेसबुक को बता देगा कि इतने मिनिमम है। तो व्हेन यू आर सेटिंग अ कैंपेन बजट, और कैंपेन बजट के बाद आपको बाद के ऑप्शंस बहुत मिलते हैं जो अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आई डो नॉट हैव दैट मच टाइम एंड दैट मच डिटेल। अगर अपने कैंपेन बजट देते हैं तो यहाँ पे अपने कैंपेन के बजट को यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं किस तरह से चले। लेकिन अभी तो अपने कैंपेन बजट नहीं कर रहे, तो अपने नेक्स्ट चूज करें। तो कैंपेन का अपने ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया। अब अपने आते हैं एड सेट्स में। ये है एड सेट्स। एड सेट्स का नाम मैं यहाँ पे एड सेट का नाम दे सकता हूँ इंटर्नशिप एड सेट। ठीक है, अब उस ट्रैफिक अपने कहाँ लेके जाना चाहते हैं? अपने वेबसाइट में लेके जाना चाहते हैं, ऐप में लेके जाना चाहते हैं, मैसेंजर में जाना चाहते हैं, व्हाट्सएप में लेना चाहते हैं, जो भी अपने बोलेंगे वो लास्ट में अपने को वहां पे डालना पड़ेगा। तो वी कैन चूज कि मेरे वेबसाइट में जाना हो तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब डायनेमिक क्रिएटिव्स मतलब अपने ये और डिटेल में आ जाता है, मैं उसको ये सब में बाद में आता हूँ। मतलब बेसिकली इसमें आप अलग अलग तरह की क्रिएटिव चूज दे देते हैं और इसकी यही अपने आप होती है कौन सी क्रिएटिव यूज करनी चाहिए।
अब डेली बजट अपने 80 रुपये से ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं। अपने शेड्यूल कर सकते हैं कि कितने तारीख से कितने तारीख तक चलेगा। ये मोरलेस बता देता है कि 80 रुपये में कितने लोगों तक मोरलेस से पहुंचाएगा। अभी तक तो टारगेटिंग नहीं हुई, तो कितने मिलियन पीपल दिखा रही है? 3,90,000 पीपल। लेकिन मैंने एक ऑडियंस बनाई थी, जिम ऑडियंस कैलकाटा, इसको क्लिक करते हैं तो वो ऑडियंस यहाँ पे सीधी आ गई। कितने लोगों की ऑडियंस थी? 200,000 पीपल। अब ये मुझे एक एवरेज बता देता है कि इतने जन को रीच करेगा डेली। आप देख पा रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? अब मेरे किसी ने मुझे पूछा था कि रन टाइम ऑडियंस का कैसे होता है, किसी ने मेरे से पूछा था ना, Ayushi, I think, आयुषी, but she is not in meeting right now. ओके। तो मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ कि अगर आपको यहाँ से ऑडियंस नहीं चूज करनी है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप एक ऑडियंस बना सकते हैं। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि भैया क्या है, इससे क्या एज होगा। दिस इज कॉल्ड अ रन टाइम ऑडियंस। यहाँ पे अपने डिटेल टारगेटिंग जैसे अपनी वहां पे की थी वो अपने यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कल की थी। तो यूजुअली क्या होता है, ये ऐड के बीच में भी ये क्रिएट कर सकते हैं, पर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे उसके अंदर जब आप ऐड बनाते हैं, आप एक ऐड बनाने के मोड में होते हैं। डू नॉट क्रिएट द ऑडियंस हियर। ऑलवेज ऑडियंस को ऑडियंस सेक्शन में बनाइए और यहाँ पे लाके सिर्फ पेस्ट कर दीजिए। दैट इज अ स्मार्टर चॉइस, क्योंकि आपको फिर टाइम डबल लग रहा है। क्योंकि जब ऑडियंस जब बनाते हैं तो आप बहुत रिसर्च कर चुके होते हैं, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे आने के बाद ये ऑडियंस फिक्स है। यहाँ पे भी आप इसको एडिट कर सकते हैं कि भाई हमको बॉडी बिल्डर के साथ एक तो और चाहिए, कि जैसे ये फिजिकल एक्सरसाइज को मैंने लिया और उसके सजेशन मांगे। वेट ट्रेनिंग भी चाहिए अपने को, यहाँ पे अपने ऐड कर सकते हैं उसको। कोई क्रंच फिटनेस को देखना चाहते हैं, ये सब अपने यहाँ पे अपनी ऑडियंस को यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। वहां अपने ऑडियंस अपडेट भी हो जाएगी, तो वो ऑडियंस अपने यूज कर सकते हैं। अब प्लेसमेंट, फेसबुक दो ऑप्शन देता है कि वो अपने आप प्लेसमेंट कर दे या मैनुअल प्लेसमेंट करे। जब अपने आप प्लेसमेंट करता है तो ये अपने आप जहां उसकी इच्छा होती है वहां करता है, लेकिन जब मैनुअल प्लेसमेंट करता है तो अपना ऑप्शन रहता है कि कहाँ कहाँ दिखाना चाहें, अपने कहाँ दिखाना चाहते हैं। अपने फेसबुक में दिखाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम में दिखाना चाहते हैं, ऑडियंस नेटवर्क मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम को छोड़ के इनके जो नेटवर्क्स होते हैं, जैसे अपने फन एंड पेटल में देख रहे थे, उस तरह किसी में दिखाना चाहते हैं या मैसेंजर में। आपने चूज कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ अपने को दिखाना है। उसके बाद उस फेसबुक के अंदर भी अपने चूज कर सकते हैं अपने को न्यूज फीड में दिखाना है, मार्केट प्लेस में दिखाना है, वीडियो फीड में दिखाना है, कहाँ का अपने को दिखाना है। ये अपने अगर मैनुअल करें तो अपने कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक में उसको जहां समझ में आएगा वहां पे वो प्लेसमेंट करेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर तीनों के ऐड यहीं से चलते हैं। व्हाट्सएप के कोई ऐड चलते नहीं है, व्हाट्सएप में अभी तक एड्स अलाउड नहीं है। यहाँ से अपने व्हाट्सएप में भेज सकते हैं ट्रैफिक ऐड को, कैंपेन लेवल में आप व्हाट्सएप में ट्रैफिक ऐड को भेज सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में ऐड आप चला नहीं सकते। ऑप्टिमाइजेशन किसके लिए? अपने को लिंक क्लिक्स चाहिए या पेज व्यूज चाहिए या इंप्रेशन चाहिए या सबसे ज्यादा रीच होनी चाहिए, ये अपने चूज कर सकते हैं। जो अपने चूज करेंगे उसके हिसाब से फेसबुक के एड्स को ऑप्टिमाइज करेगा, उस तरह के लोगों को ये दिखाएगा। उसके बाद अपने कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, एक दिन के अंदर इससे ज्यादा नहीं करेगा। अपने को कॉस्ट कंट्रोल के वो कई जगह ऑप्शन देता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने देखा था, तो फेसबुक अपने को कई जगह ऑप्शन देता है जहां पे अपने को कंट्रोल करने को देता है कि अब कब चार्ज किया जाएगा, डिलीवरी या इंप्रेशन। तो देखिए दो ऑप्शन है, लिंक क्लिक। ये लिंक क्लिक ऑप्शन जल्दी से आपको मिलता नहीं है। अगर मैं कई बहुत सारे ऐड चला दूं, जब मेरे लाखों में बजट हो, तब मुझे ये भी ऑप्शन मिलता है कि मैं लिंक क्लिक के ऐड चला सकता हूँ, लेकिन ये तभी मिलता है जब आवर बजट इज दैट गुड। ये जनरली ऑप्शन मिलता नहीं है। अब डिलीवरी टाइप हो सकती है स्टैंडर्ड। यहाँ पे मैं अगर लाइफ टाइम बजट यूज करता, कैंपेन बजट, तो यहाँ पे मुझे कई ऑप्शन और मिलते कि मुझे किस तरह की डिलीवरी चाहिए, स्टैंडर्ड हो, डिटेल हो, लेकिन अभी मुझे वो मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि कैंपेन बजट में ही चलता है। इसके बाद अपने नेक्स्ट करते हैं।
अब ये ऐड मैं किसके पेज में चलाना चाहता हूँ, आर्ट लॉन्च में या मेरे पर्सनल पेज में या मधुकर चोपड़ा में, किस में चलाना चाहता हूँ मैं उसमें चूज कर सकता हूँ कि भाई इस पेज में चले। उसके बाद जब मैंने किया था तो यहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा है कि कौन से यूआरएल पे चलना चाहिए, तो मुझे अपने डिस्क्रिप्शन में यूआरएल देना पड़ेगा। तो मधुकर चोपड़ा का मुझे यूआरएल देना है, तो मधुकर चोपड़ा में सर्च किया, वेबसाइट में गया, ये यूआरएल को मैं कॉपी किया और इस यूआरएल को मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, भैया इस यूआरएल तक लेके जाओ। तो ये जो ऐड जाएगा वो इस यूआरएल में जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऐड का नाम दिया, एड सेट का नाम दिया, यहाँ पे मुझे ऐड का भी नाम देना पड़ेगा। मैं अलग नाम भी दे सकता हूँ, आई कैन गिव द सेम, जैसे इंटर्नशिप दे दिया मैंने गलती से, तो नाम कुछ भी हो सकता है। मुझे ये नहीं कि इंटर्नशिप ऐड या यूजुअली हम लोग नंबर सीक्वेंस के देते हैं, किस तरह से मेरा ऐड दिखाई देगा अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो दिखाई देगा। अगर डायनेमिक फॉर्मेट मैंने चूज किया होता तो मुझे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। अब इसमें किस तरह का ऐड चला सकते हैं, सिंगल इमेज चला सकते हैं कि एक इमेज हो, कैरोसेल का मतलब है 2 या उससे ज्यादा फोटोग्राफ्स। अब यहाँ पे कैरोसेल के अंदर मैं यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास मान लीजिए बहुत सारा है, मान लीजिए मैंने ये इमेज सेलेक्ट की, मैं अभी इमेजेस और नहीं डाल रहा, मैं बेसिकली जो मेरे है ये किस तरह से दिखाई देगा। इसकी हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, मेरे को अगर कुछ देना है तो डिस्क्रिप्शन, यूआरएल ये नीचे से जो था वो ले लिया, मुझे कोई दूसरा यूआरएल देना तो यहाँ मैं वो दे सकता हूँ। ये एक कार्ड हुआ कैरोसेल की, इस तरह से दूसरा कैरोसेल का कार्ड दिया, यहाँ पे दूसरा, इस तरह के मैं 10 कार्ड अलग अलग बना सकता हूँ। सेकेंड कार्ड हुआ, उसमें दूसरे फोटोग्राफ डाल सकता हूँ। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ एड। मुझे इसकी क्या हेडलाइन देनी है, मुझे क्या डिस्क्रिप्शन देना है, ये प्रीव्यू से मैं इसके लिंक शेयर कर सकता हूँ किसी को, फेसबुक में नोटिफिकेशन में दे सकता हूँ। ये मुझे यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, ये मेरे मोबाइल के अंदर मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि किस तरह का, किस तरह से ऐड दिखाई देगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये मोबाइल न्यूज़ फीड है, डेस्कटॉप न्यूज़ फीड में किस तरह से दिखेगा। क्योंकि ये कैरोसेल ऐड है, अगर सिंगल इमेज ऐड होगा तो उसमें सिर्फ एक इमेज होगा। तो मैं यहाँ पे ऐड चूज कर सकता हूँ कि किस तरह का, अगर सिंगल इमेज या वीडियो होगा तो उसमें सिर्फ एक इमेज होगी। उसमें यहाँ से मैं मीडिया ऐड कर सकता हूँ, मुझे कोई फोटो ऐड करनी है तो। अब अलग अलग साइज में स्टोरी में किस तरह से दिखेगा, कहाँ कहाँ कैसे दिखेगा, वो मुझे पूरा इसका दिखा देगा कि हाउ उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ अपने फोटो को, उसके लिए अलग अलग फोटोग्राफ्स, अलग अलग प्लेसमेंट के लिए अलग अलग फोटोग्राफ्स में चूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। आई सपोज तो 654 हो गया। उसके बाद क्या होता है, लास्ट चीज होती है वेबसाइट, डेस्टिनेशन में अपना वेबसाइट दे दिया, ये दे दिया, और यहाँ लास्ट में जो होता है वो फेसबुक पिक्सल सेटअप करना होता है, या ऐप इवेंट। यहाँ पे अपने जो होते हैं, यहाँ पे फेसबुक पिक्सल का ट्रैकिंग होती है अपनी। यहाँ पे ऐप इवेंट और अपने जब सेटअप करते हैं तो यहाँ पे अपने फेसबुक पिक्सल भी सेट होता है। तो इससे अपना ये यहाँ पे जो ट्रैकिंग होती है, यहाँ पे सेटअप करने से यहाँ पे फेसबुक पिक्सल सेट होगा, वो अपने पूरा इवेंट को ट्रैक करेगा। अभी मैं ऐड नहीं चला रहा था, जस्ट गोइंग बैक एंड क्लोजिंग इट। पर मेरे हिसाब से मोर से आपको समझ में आया होगा कि फेसबुक ऐड किस तरह से बनाया जाता है। मेरे हिसाब से 6:55 हो गया, सो आई एम स्टॉपिंग, क्योंकि 7 बजे का टाइम था। तो एनी क्वेश्चंस नाउ? किसी को कुछ समझ में नहीं आया? आई ट्राई टू कवर द टॉपिक। मैं आप लोगों को
प्लेटफॉर्म समझाने की कोशिश किया, मैंने समझाने की कि किस तरह से लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक ऐड चला के दिखाया। एनी क्वेश्चंस राहुल, कुछ क्वेश्चन है? नो सर। नो सर। समझ में आ गया निहारिका, आदिति, पायल? Yes, sir. हाँ सर समझ आ रहे हैं। Yes, sir. और क्लियर। ओके, तो आज इसके ऊपर है मेरा ये वीडियोस, जहाँ तक कि मैं कोशिश करूँगा कल तक आपको डाल दूँ। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे रखें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल सुबह आपको एग्जैक्टली बता सकूँगा कि कल शाम को होगा कि नहीं होगा। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कल शाम को अपना 5 से 7 का रहे, उसके अंदर दैट विल बी द लास्ट क्लास, जिसके अंदर मैं सोशल मीडिया, गूगल, माई बिजनेस, वेबसाइट सबकी ऑडिट करना सिखाऊंगा कि किसी भी एक बंदे की किस तरह से ऑडिट की जा सकती है, कैसे पता चलता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, what is the digital presence, how they are working, that things I'll cover tomorrow. So ये चीज़ भी यूजुअली अगर राहुल जैसे कोई भी करते हैं तो ये यूजुअली आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप करेंगे तो आपको नहीं सिखाया जाएगा। तो दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू इंटर्नशिप। अभी तक जो मैं बताया तो उसमें काफ़ी कुछ हो सकता है कि आपको बाहर से मिल जाए, लेकिन ये जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ दैट इज द हाई लेवल थिंग एंड इट वोंट बी इजीली टॉट। तो एनी क्वेश्चंस टेल मी, अदरवाइज आई एम क्लोजिंग द सेशन। नो क्वेश्चन सर। नो सर, नो क्वेश्चन। समझ में आ गया सबको? दिव्यांश, आदिति? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay. यस सर। Okay, so you can leave the thing, मतलब